This conference will now be recorded. Good morning. Welcome to all members of Gandhidham branch, Bhuj branch, and Anand branch, and today's faculty, Sri Sachin Dedia, sir. I also welcome a chairman of Bhuj branch, Anand branch, and our today's missing chairman, Gandhidham branch, Karan Thakkar. I would like to request Jitendra Thakkar, Bhuj branch chairman, for his welcome address. Over to you, Jitendra bhai. Good morning to all of you. Today is the Dasera. So in the festive season, first of all, I wishing you happy Dasera to all of you. And we are feeling little bit relaxed on today Sunday morning as the Revenue Authority has extended the time limit for the compliance of the GST audit and tax audit yesterday. So we can enjoy today's virtual meeting. We are using technology in our day-to-day life, and we are living in a digital world. So there are advantages and disadvantages of usage of technology as we are using a speed. So we should have to keep the security aspects in our mind while using the technology. So today Sachin Dedia, IT expert, with us to guide us on the topics of cyber security. So I welcome on behalf of Bhuj, Gandhidham and Anand branch today's speaker Sachin Dedia. So welcome Sachin bhai, and thank you Sachin bhai for sparing your valuable time. I also welcoming chairman of Gandhidham branch Karan Thakkar and entire managing committee, and CA Bhavesh Thakkar, Anand branch chairman, entire managing committee. And I also welcoming all the members of Bhuj, Gandhidham and Anand branch on behalf of Bhuj branch managing committee. Thank you. Thank you. Further, I would like to request CA Bhavesh Thakkar, Anand branch chairman, for his address. Over to you, Bhavesh bhai. Good morning. I, CA Bhavesh Thakkar, Chairman Anand Branch, wish you all happy Dasera on today's auspicious day. I also thank CA Jitendra Thakkar, Chairman Bhuj Branch, and Team Bhuj, Chairman CA Karan Thakkar, Gandhidham Branch, and his team. Thank you for giving us the opportunity for today's joint VCM. Wish you all happy learning. Thank you. Thank you, Bhavesh bhai. Further, I would like to request Sri Ramesh Pendolia, Vice Chairman of Bhuj branch, for introduction of today's faculty, Sachin Dedia ji. Over to you, Ramesh bhai. It is my pleasure to give a brief introduction of today's speaker, Sachin Dedia sir. Sachin Dedia ji is an independent cybercrime investigator and also a certified ethical hacker, EC Council USA. He is also a certified international trainer in the field of cybersecurity, ethical hacking, cybercrime investigations, and digital forensics. Since many years, he is working as an independent cybercrime investigator and also as an IT security expert for various MNCs, SMEs, government departments, corporates, and individuals. He has also provided training to Mumbai, various other state police departments. He has also been assisting various other government departments of India with respect to their cybercrime queries. Since 2010, he has been successfully conducting various seminars and workshops across numerous schools, colleges, universities, chartered accountants, chapters, Rotary clubs, hospital, etc. Overall, covered all the sectors of the society. He is one of the most popular speakers in Mumbai University for the refresher and orientation courses in 2010. He was privileged to give seminar in the Raj Bhavan, i.e. Government's Office of Mumbai, Governor Office of Mumbai. 9 years of experience in vulnerability assessment and penetration testing, VAPT, ISO 27001 network VAPT, web application VAPT. He has conducted numerous audits for various international as well as national clients, corporate and government departments. He has been conducting corporate workshops at and is associated with various prestigious associations like Indo-American Society,
Bombay Chamber of Commerce and Industry, Princeton Academy, ICAI, and Bankers Training College. Sachin Dediaji founded Skynet Secure Solutions, a company headquartered in Mumbai, is specialized in cyber security and digital forensics. Skynet Secure Solutions was recently recognized as one of the top 25 cybersecurity consultant company in India. He has successfully conducted over 500 seminars and workshops across India and enlightened over 75,000 participants. With a brief introduction, I will request Sachin Dediaji to take over the session, sir. Sachin Dediaji. So thank you, sir. Thank you for the introduction, and thank you all the branch chairmen for inviting me. And happy Dasera to all of you. And I'm start with my session, and I'll keep my session as a very practical one. I'll show you practical demos and everything like that. But before I start, I just want to ask all of you, what do you want to learn from me? Basically, like, see, people, when I say that I'm into ethical hacking, cybercrime investigations, you must have come for a reason, right? So what do you want to learn from my side? Just let me know. But what are you worried about, or what are you curious about? Anything that you have come with an agenda in mind, कि आज मेरे को ये सीखने मिलेगा, or I'll get to learn this. So anything that is there, please let me know. मतलब anything coming to your mind, what you're worried about. Sachin, say, basic things is that what we should keep is security aspects in mind while discharging our duties in a professional life. Right. Basic things which we should have to keep in mind, and we are also using social media. So, what basic things we should have to take care while using the social media? Right. So just tell me something day to day, how to protect computer from viruses or cyber attack. Okay, so I'll just ask you one question now, everybody. How many of you have started using mobile to make payments? Mobile banking, basically. How many of you have started with mobile banking? Almost all. Almost all, everybody. So you have installed. Yeah. Now there are two ways to do Yes. mobile banking. Okay, one is through a wallet like PhonePe, Google Pay, and one is through the mobile banking app itself. मतलब ICICI Bank app है, HDFC Bank app. So how many of you are doing mobile banking app? मतलब mobile, like you have put an ICICI Bank app or a HDFC Bank app itself, not a wallet. Wallet नहीं. There's a difference. Wallet and this thing. So majority of you have installed a mobile banking application itself. Yes. Yes, I think so. Right. Yes. So now I will tell you. Okay. Now what criminals are attacking? See, instead of targeting a laptop or a computer, they are attacking a phone itself. Okay, especially an Android phone and even an iPhone, but Android ज़्यादा. Because today they will get everything on the phone. One, they will come to know your mobile banking. Second, they can see your photos, your videos, your location. They can even see your WhatsApp messages and everything. Okay, so I'll just show you one application, FlexiSpy. Okay, ये वर्ल्ड का सबसे dangerous or world's most powerful spy hacking application. This is known as one of the world's most dangerous spy hacking application itself. Right now, if you once this application is installed inside the phone, now it is completely invisible. दिखता नहीं है screen के ऊपर. It will be running in the background. Phone के पीछे it will run in the background. And if you want to look at the features of this particular thing, I'll click on the Android. Okay, एक बार once it is installed inside the phone, just look at the features. What it can do. It can do phone call recording. It can do environment recording. Phone call recording means what? Oh, full call recording. Environment recording मतलब phone की आजू बाजू की बातें. Then it can do Facebook messages, आपके Facebook के messages, Hike, Kick, Instagram, Line, Skype, Viber, WhatsApp messages, Hangout, QQ, Telegram, Tinder, WeChat, email, Gmail, call logs, address book, SMS messages भी पढ़ सकते हैं. What do you mean by SMS messages? It would mean including OTP of the bank. Then your location tracking, whatever your browser activity, your application installed, keylogger, which means
आप बाद में कंप्यूटर पे जो भी टाइप करोगे सामने वाले को सब पता चलेगा. Your photos, your videos, your audio files, your calendar, practically everything. Okay, I hope this is clear. Yes, spy application है which is installed inside the phone will run in the background. ये screen के ऊपर नहीं दिखता है. It is not shown visible on the screen itself. Right. Now through this, who will use this software? Personal life में भी use होता है. Husband has got it out on wife, wife has got it out on husband. So ये application, you know, they will install during this particular things itself. We have seen partners putting in another partner's phone. We have seen bosses putting in their employees' phones also, ताकि पता चले कि भाई what the employee is up to. But from a financial point of view, what I would request all of you, I would request we'll have to read this heading. Yeah, just read this one. Okay, I'll bring it down. Now I would request read this article. Clear, everybody? See, income tax refund application, I think all of you would be very clear now. Income tax का refund SMSs कितने आ रहे हैं? He received an SMS, he clicked on the link, automatically an application got downloaded, right? Can you tell me what kind of an application would be? यही वाला application, spy application itself, the mobile spy, right? Or next day, within next day itself, his bank account में से 1.5 lakh rupees was withdrawn. Now question that you will ask me कि सर बैंक में से पैसा विड्रॉ होगा तो OTP तो आएगा ही ना, SMS आना चाहिए, OTP आना चाहिए. But please tell me OTP कौन से फोन पे आएगा? It will come on the same phone on which the application has been installed. I hope it is clear. So can you read the SMS also? Yes. See, ये जो application है Flexi Spy, this is very popular even in Gujarat. Bhuj, Gandhidham, Ahmedabad में very famous this application. So even well-to-do families are using this. बेटी की शादी है, बेटी की शादी अरेंज मैरिज है, राइट? तो गर्ल्स के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, एंगेजमेंट के 10-15 दिन आगे पीछे होने वाले लड़के को एंगेजमेंट का जो पहला गिफ्ट है वो फोन दे रहे हैं. And before the phone is gifted, such kind of a spy application is installed and given to the boy. And once the boy begins to use that phone, you understand, you know, how much of a data will be taken out itself. I hope this is clear, everybody. This Flexi Spy wala. Now, any doubts or any questions you have in this, please ask me. इसमें कुछ डाउट है, इसमें कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए. हेलो. यस. हाँ सर, हमारे मोबाइल में ये आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन है कि नहीं है, किसी ने अगर इंस्टॉल कर दिया है तो? Yes, that is the question that I was hoping that somebody would ask. Okay. Apart from that, anything else, please let me know. और कुछ माइंड में डाउट आ रहा है तो बताओ. और उसको वो लोग ट्रैक कैसे करते होंगे जिसने सपोज मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, ठीक तो है. हाउ दे वुड बी ट्रैकिंग माय एक्टिविटीज? मींस उसका कुछ अलग सॉफ्टवेयर होता है कि वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं? मान लो मुझको किसी के मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करनी हो तो मैं डाउनलोड Right. एप्लीकेशन कर दूं, उसके बाद मैं उसको ट्रैक कैसे करूंगा? दैट इज अनदर क्वेश्चन. हाँ, see this everybody, Flexi Spy एक ही एप्लीकेशन नहीं है, ओन स्पाई करके भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है? तो सेम. अभी लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं उसको? ओके, हम लोग को है ना, मतलब एनीबडी हु वांट्स टू इंस्टॉल, वी हैव टू टेक द फोन इन हैंड. विक्टिम का फोन हाथ में आना चाहिए या तो फिर उनको वो लिंक भेजनी पड़ेगी. लेकिन अगर फोन हाथ में आ गया या फोन गिफ्ट करोगे या फोन हाथ में आ गया
तो उनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, उनका फोन हाथ में लेके गो टू द वेबसाइट लाइक ownspy.com या flexispy.com. कैन यू सी ऑप्शन नोन एज व्हाट डाउनलोड, राइट? तो उनके फोन के ऊपर ये ओनस्पाई एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम द नॉट फ्रॉम द प्ले स्टोर बट फ्रॉम द गूगल क्रोम, फ्रॉम द ब्राउजर. एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त परमिशन पूछे जाते हैं, तो हम लोग अपने खुद के लिए तो परमिशन पढ़ते नहीं है, उनके लिए भी नहीं पढ़ेंगे. आई एक्सेप्ट आई एग्री करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? उसके बाद एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त अपने से दो चीज पूछेगा, पुट ए यूजर नेम, पुट ए पासवर्ड, ठीक है? तो ऑन द स्पॉट कोई भी यूजर नेम या कोई भी एक ईमेल आईडी और यूजर नेम और उसका पासवर्ड डाल देने का. फिर नेक्स्ट 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 पे बटन दबाओगे, फिनिश पे बटन दबाओगे, एप्लीकेशन छुप जाएगा, दिखने वाला नहीं है, एप्लीकेशन विल नॉट बी शोन ऑन द स्क्रीन, एंड देन यू गिव द फोन बैक basically. Now on the same website, if you look at this over here, okay, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉगिन का एक बटन है, कैन यू सी? तो आप जैसे ही लॉगिन के ऊपर बटन दबाओगे वो आपसे वही यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा जो हम लोग ने फोन के अंदर डाला है, एंड एज सून एज यू पुट द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके, you will be able to see फोन का पूरा डेटा ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट itself. सारा डेटा अपने को यहाँ पे देखने मिलेगा वैसे. तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही यूजर नेम और पासवर्ड डालने को बोला जाएगा, एंड दैट सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड यू हैव टू कम एंड गिव इट ऑन द वेबसाइट ऑफ FlexiSpy और OwnSpy, एंड देन सामने वाले का पूरा डेटा दिखता है. नाउ क्वेश्चन इज हाउ डू वी प्रिवेंट? फर्स्ट थिंग, as a chartered accountant, my request is you have other clients data also. आपके पास आपका खुद का डेटा नहीं है, दूसरे का भी डेटा है, ओके? तो learn one thing in your life, never to accept phone as a way of a gift. I know it is very difficult, but emotions पे control करना पड़ेगा. कोई कितना भी अच्छा client आके अगर phone gift करेगा ना, तो exchange the phone or give the phone to somebody else, but you should not use that phone because that phone could already be having such kind of a spy applications. So that is one part. Second, do not keep your phone protected very well, and most importantly is that you will have to do certain do's and don'ts which I'll be sharing with you also later on. But if you want to identify कि अपने फोन में ऐसा कुछ है कि नहीं है, तो एक सिंपल रिक्वेस्ट क्या है कि यू नो इफ यू आर यूजिंग, अगर आप लोग आपका फोन बहुत मोबाइल बैंकिंग के लिए यूज कर रहे हो, बिजनेस पर्पस, ईमेल आईडी भी उसी के ऊपर है, देन यू नीड टू नाउ हैव ए गुड एंटीवायरस विद इन योर फोन ऑल्सो. आपके फोन के अंदर भी एक अच्छा एंटीवायरस होना चाहिए. So it can be any antivirus, you know, it can be in the name of Quickkill Mobile Antivirus. ठीक है, you can use that or you can use Lookout. कोई भी एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करो, स्कैन योर फोन यूजिंग ए गुड एंटीवायरस, ओके? तो ये एंटीवायरस के बारे में बोलते हैं, बताते हैं कि उस फोन के अंदर कोई भी हिडन एप्लीकेशन है क्या, या जो डेटा बाहर भेज रहा है. और अगर वो कोई डेटा मतलब कोई ऐसे एप्लीकेशन बता देते हैं कि भाई ये ऐसा एप्लीकेशन है जो डेटा बाहर भेज रहा है, ये स्पाई एप्लीकेशन है, तो आपने वो एप्लीकेशन कभी देखा ही नहीं है, ना ही डैशबोर्ड के ऊपर दिख रहा है, तो एंटीवायरस बाद में खुद ही बोलता है कि इसको रखूं कि रिमूव करूं, राइट? एंड इफ यू नॉट सीन दैट एप्लीकेशन, आई वुड रिक्वेस्ट गो अहेड एंड रिमूव दैट एप्लीकेशन. Go ahead and remove that application basically. So how do we identify this? Is by running a good antivirus within your phone. But antivirus के लिए एक बार फोन स्कैन हो गया बेसिकली, एक बार फोन स्कैन हो गया, देन रिमूव दैट एंटीवायरस ऑल्सो. यस अभिषेक जी, दैट मींस यू आर राइट. कभी कभी एंटीवायरस जब हम लोग सेटअप फाइल इंस्टॉल करते हैं ना, तो उन लोग साथ में थोड़े वायरसेस भी इंस्टॉल करवा देते हैं सेटअप फाइल के अंदर ही. रीजन इज ताकि जब आप एंटीवायरस स्कैन मारो तो वो थोड़े और वायरसेस निकाल के देगा, तो आपको इफेक्ट आती है कि हाँ इसने कुछ निकाला करके. यू नो इट इज जस्ट टू गिव यू दैट द एंटीवायरस वाज वर्थ इट, बेसिकली पैसा डालने लायक था करके. सो समटाइम्स एंटीवायरस ड्यूरिंग द सेटअप फाइल्स इटसेल्फ दे माइट कंटेन few viruses. But see, my request to all of you here is, to all the chartered accountants, अगर आपने खाली 1 मिनट के खाली सोच के लिए बताइए, अगर ये एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर कोई डाल देगा और आपका मोबाइल बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड भी चला गया और SMS भी चला जाएगा, तो आपके बैंक में कितना बैलेंस है दैट यू कैन लूज राइट नाउ टुडे.
I hope it is clear, everybody. ये तो मैंने एक दो ही केस स्टडीज बताए थे, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज है और हफ्ते के 2-3 मतलब मिल ही जाते हैं कि जहाँ पे लोगों का ऐसा पैसा चला गया. वी हैव सीन इवन 10-15 lakhs withdrawn from the person's bank account because his mobile was hacked. अच्छा, is Android security scan safe sufficient? No, Ketan ji. Apart from Android security ka, it is nowadays preferred you can use a free or a good antivirus, scan the phone and then remove the antivirus also. वरना मेरी एक रिक्वेस्ट है, पता है मैं कैसे कर रहा हूँ अभी, आई डो नॉट नो आपको डे टू डे क्या रोज बैंकिंग के ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं कि नहीं, वरना मैंने क्या किया है, मोबाइल वॉलेट यूज कर रहा हूँ गूगल पे और समथिंग लाइक दैट, उसके ऊपर सफिशिएंट बैलेंस डाल देता हूँ ताकि छोटे मोटे इलेक्ट्रिसिटी और ये सब के बिल्स विल मेक द पेमेंट थ्रू गूगल पे. ओनली डूइंग एनईएफटी. तो एनईएफटी में मैं क्या करता हूँ पता है, आई यूज माई लैपटॉप. ओके, मेरे लैपटॉप के ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड डालता हूँ और ओटीपी आता है मेरे मोबाइल के ऊपर. So that is the reason I'm involving 2 devices when I'm doing net banking. मतलब अगर आप मेरे को पूछोगे तो मैंने एक भी मोबाइल बैंकिंग का ऐप नहीं डाला है मेरे फोन के ऊपर. नो मोबाइल बैंकिंग ऐप. आई हैव ए गूगल पे और उसकी लिमिट भी उतनी है 20,000 रुपीज. मतलब उसके साथ एक ऐसा बैंक अकाउंट लिंक करके रखा है जिसकी लिमिट ही 20,000 रुपीज की है, बैलेंस ही 20 का है. तो लूट के कोई मेरे को 20 का ही लूट के जाएगा बेसिकली. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. ऑन द मोबाइल बिकॉज आई डू नॉट नो, रोज व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं, रोज एसएमएस आता है. आज भी अगर आप देखोगे दशहरा का इतने सारे मैसेजेस आएंगे आपको, दिवाली के टाइम पे मैसेज आएंगे. आई डू नॉट नो कौन से मैसेज में क्या हो सकता है, नहीं भी हो सकता है करके. इट इज ऑलवेज गुड विशेस बट एनी अननोन लिंक्स इफ आई एंड अप क्लिकिंग, आई डू नॉट नो कि वेदर माय मोबाइल विल बी इन्फेक्टेड और नॉट. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माय मनी, I always prefer not to put a mobile banking app on my phone. I do my mobile banking NEFT RTGS using my computer and let the OTP come on my mobile. बाकी छोटे मोटे जो, जैसे अगर मैं अभी एयरपोर्ट के ऊपर हूँ और समथिंग लाइक दैट, तो एवरीथिंग इज जीपे इज सफिशिएंट. आई मीन एनी वॉलेट वुड बी सफिशिएंट टू मेक द स्मॉल पेमेंट्स ओवर हियर. Yes, Jinesh, Samsung also has got its own phone scan, but these are all inbuilt basically. Okay, so we nowadays, if you are doing a lot of mobile banking, sir, then it's preferred that you can use your own, have a good antivirus to scan your phone periodically. उसको नहीं रखोगे बाद में तो भी चलेगा, बट एक बार एक डिफरेंट एप्लीकेशन के थ्रू फोन को स्कैन मरवा देना चाहिए. आई होप ये क्लियर है. any doubts you have please ask me, because ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आज मेहनत का पैसा सारा मोबाइल के ऊपर आ रहा है और पता चला मोबाइल ही हैक हो गया जिसके ऊपर ओटीपी भी आ रहा है. तो इट इज लाइक यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द मनी बैक ऑल्सो. प्लीज रिमेंबर दिस सॉफ्टवेयर ऑल्सो, बिकॉज कभी ना कभी कोई ना कोई क्लाइंट आके भी आपको बोलेगा जरूर कि लगता है उसका फोन हैक हो गया है, उसकी कोई व्हाट्सएप की बातें सुन रहा है, कोई उनका लोकेशन ट्रैक कर रहा है. So then you need to be knowing that okay उनके फोन में भी किसी ने ऐसा स्पाई एप्लीकेशन डाल दिया होगा. So this way you can even help your client in this regard also. अगर unfortunately अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो गया होगा तो फिर. अभिषेक जी, अगर आपका विंडोज ओएस ये नहीं है, क्या बोलते हैं, लाइसेंस नहीं है, देन ऑलवेज सिक्योरिटी इज लूज. मतलब सिक्योरिटी वीक ही रहेगी आपकी, बिकॉज फिर अपने को ना वो विंडोज के अपडेट नहीं मिलते हैं, जो लेटेस्ट पैचेस जो होते हैं या जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ना सिक्योरिटी वाइज, वो नहीं मिलते हैं. तो सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी वेरी वीक in terms of using a pirated Windows basically. Then you have to compensate by using a good antivirus and at least having a paid antivirus and keep on regularly scanning your PC using that paid antivirus. Clear everybody? Yeah. Yes, let me know if you have any other doubts, because ये जो है ना पिछले 6 महीनों में
अगर मेरे को सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं ना, वो मोबाइल बैंकिंग, अरे मोबाइल हैक होने के ही आ रहे हैं, जिसके थ्रू उनका पैसा या डिटेल्स एंड पर्सनल डिटेल्स आर आल्सो गेटिंग एक्सपोज्ड। हेलो। यस। हाँ सर, मेरे एक नॉन केस में ऐसा केस हुआ था कि उसको सपोज कोई कॉल आया पहले कि उसको कुछ टिकट बुक करवाने का था, तो ठीक है। उसने एक गूगल पे किसी का नंबर लिया टिकट एजेंट का, तो उसको फोन किया, तो उसको बोला कि मुझे टिकट बुक करवाना है, तो उसने बोला ठीक है, आपको कुछ सिर्फ 10 रुपीज कुछ मुझको पेमेंट करना होंगे, एजेंसी चार्जेस जो भी होगा वो। उसके लिए राइट। उसने एक लिंक भेजा उसके मोबाइल पर कि ये कुछ का कुछ गूगल पे या किसी ऐसे ही पेमेंट वॉलेट का हाँ ऐप है, हाँ, पेमेंट का उस लिंक पर आया आप होगा। हाँ। लिंक करके उसको पेमेंट कर दो। हम्म। तो फिर वो उसने पेमेंट किया और उसको फोन किया, तभी पेमेंट हम्म। 10 रुपीज उसके अकाउंट में ट्रांसफर करके फोन किया, तो उसका फोन चालू था, तभी उसको डेबिट बैंक में से मैसेज आने हो गए, तो उसका बैंक का तो कुछ ट्रांजैक्शन किया नहीं होगा, तो वो केस में कैसे हुआ होगा वो हैकिंग बैंक का? हाँ, मीन्स जब बिकॉज उसका फोन चालू था तभी कुछ आई हुआ नो। है। नहीं 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 नहीं। देखो, दो चीज होती है बेसिकली कि जो फोन का जो उसने स्क्रीन क्यूआर कोड भेजा होगा ना, वो 10 रुपया पेमेंट करने के लिए हाँ, सामने क्यूआर कोड वाले या उसको लिंक भेजा था सामने वाले ने कि ये मेरा मेरा गूगल पे का लिंक है, उस पर लिंक हाँ, पर आप क्लिक करके उसमें पेमेंट ट्रांसफर कर दो अपने गूगल पे अकाउंट या जो भी वो वॉलेट यूज करता होगा उसमें से। राइट। लेकिन फिर भी उसके बैंक में से पैसा निकला ना बाद में। हाँ, फिर उसने फोन किया कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया है, तभी वो आदमी ने बोला ठीक है मैं आपका प्रोसेस कर रहा हूँ, फिर उसके बैंक में से डेबिट हो गया जब भी उसका फोन चालू था तभी। बिकॉज इसका मैं लॉजिक बता देता हूँ। ये क्या हुआ है कि उसने जो लिंक भेजी थी ना, उसके थ्रू देयर आर हम्म, टू थिंग्स, इधर एक्सेस टू द फोन, या तो फिर वो गूगल पे ना, आप लोग सब लोग इतना ध्यान रखना कि अपना जो वॉलेट है ना, वॉलेट वो इट इज लिंक टू अवर बैंक अकाउंट, क्योंकि मेजोरिटी लोगों को फर्क नहीं समझ में आता कि यूपीआई बेस्ड वॉलेट होते हैं। यूपीआई बेस्ड वॉलेट मतलब क्या? वॉलेट में बैलेंस हो या ना हो, अगर बैंक में बैलेंस है तो उतना हम लोग फंड ट्रांस मतलब उतना हम लोग पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग दैट वॉलेट। ओके। एंड आई हैव सीन अनफॉर्चुनेटली पीपल लिंकिंग देयर सैलरी अकाउंट्स। समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों को कि वॉलेट का पैसा अलग है और यूपीआई बेस्ड वॉलेट मतलब गूगल पे और फोन पे में बैलेंस नहीं होता है, डायरेक्टली बैंक में जितना बैलेंस है उतना आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो इनका जो एग्जाम्पल था, उनके केस में क्या होगा कि इन्होंने भले गूगल पे का लिंक आया, बट इनका गूगल पे ना वो यूपीआई बेस्ड है, मतलब इट इज लिंक टू ए बैंक अकाउंट। इसके लिए फिर उनके बैंक में से पूरा पैसा विड्रॉ होना शुरू हो गया था। इसके लिए अगर आपने देखा ना, मैंने भी यही बोला ना कि मेरे गूगल पे में जो मेरा बैंक लिंक है ना, उस पर बैलेंस ही 20,000 रुपीज का है बेसिकली। सो इट कैनॉट गो बियॉन्ड 20 ऑल्सो बेसिकली। बट यस, ये लिंक किसकी थी पता है? वो पेमेंट वाली लिंक थी। तो 10 रुपए का पेमेंट के बदले क्यूआर कोड में लिंक नहीं दिखता है। वंस यू क्लिक ऑन द लिंक, देन सामने वाले के पास एक्सेस है एंड देन यू कैन विड्रॉ मोर मनी ऑल्सो। मतलब तो वो लिंक के साथ उसका पूरा जो गूगल के पे का उसका खुद का जो सिक्योरिटी पासवर्ड लॉगिन वगैरह को वो सब चला गया होगा, ऐसा आप बता रहे हैं? Yes. क्योंकि कभी कभी या तो लिंक भेजा होगा, या जो ऐसे दूसरे टाइप के जो स्कैम होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूआर कोड वाला स्कैन। आपको पता है ओके। अभी हम लोग जब दुकान पे जाते हैं बेसिकली, तो एक क्यूआर कोड रहता है ना स्कैन करने के लिए, वैसे। तो ऐसे ही क्यूआर कोड भी अगर कोई भेज देगा ना और उसने क्यूआर कोड को स्कैन मारा, तो भी पैसा विड्रॉ हो जाता है। सो इसके लिए मैं बोल रहा था, नाउअडेज एवरीबॉडी इज अटैकिंग द फोन बेसिकली। तो अपने फोन में अगर मोबाइल बैंकिंग ऐप अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, आई वुड रिक्वेस्ट रिमूव इट, या तो फिर कोई ऐसा मोबाइल कोई ऐसा बैंक का ऐप डालना जिसमें इतनी लिमिट ना हो। और अगर आप ये फोन पे, गूगल पे या वॉलेट भी यूज कर रहे हो ना, तो आप प्लीज नोटिस कर लो कि उसके पीछे कौन सी बैंक अकाउंट लिंक करके रखी है और इसमें आप कितना बैलेंस रखते हो। ओके, इफ वी यूज विंडोज लाइसेंस वर्जन, नहीं, उमंग जी अगर आप विंडोज 10 की बात कर रहे हो, अगर आपके पास विंडोज 10 का लाइसेंस है, ओके, देन ऑनेस्टली स्पीकिंग विंडोज का डिफेंडर इज पावरफुल इनफ, यू डू नॉट नीड टू हैव एनी गुड एंटीवायरस। आई मीन कोई एंटीवायरस नहीं होगा तो भी चलेगा, अगर आप विंडोज 10 की बात कर रहे हो तो। नो नो हार्दिक जी, वॉलेट मतलब क्या होता है? वन टाइम कंसेंट इज नॉट फॉर एवरी टाइम, इट इज ओनली व्हेन आई सेंड ए क्यूआर कोड। मैंने क्यूआर कोड भेज दिया, उसके अंदर अमाउंट फिक्स कर दिया, तो जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन होगा ना, उतना अमाउंट मेरे पास आ जाएगा।
अदरवाइज लोग क्या करते हैं पता है, लिंक भेजते हैं ना, लिंक में एक ये टीम वीवर आपने नाम सुना होगा ना, टीम वीवर एनी डेस्क, वैसे टाइप का एप्लीकेशन उन लोग इंस्टॉल करवा रहे हैं क्विक सपोर्ट के नाम से, क्विक सपोर्ट। तो उसके थ्रू दे गेट कंप्लीट एक्सेस टू द फोन, मतलब मैं आपका फोन देख सकता हूँ, मैं आपके फोन को एक्सेस भी कर सकता हूँ, और बाद में उन लोग पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। बट बहुत फटाफट पैसा निकल जाता है, मतलब आप फोन पे बात कर रहे हो और आपको डेबिट का एसएमएस आया, मतलब उन्होंने वो पेमेंट वाली लिंक या क्यूआर कोड वाली पेमेंट वाली लिंक भेजी। हेलो हाँ सर, वो बात सही है वॉलेट वाली आपकी, लेकिन जैसे गूगल का अकाउंट है मेरा, स्टोरेज का एनुअल रिन्यूअल रहता है, या अमेजोन का एनुअल रिन्यूअल रहता है, तो वो तो वन टाइम कंसेंट जैसा ये ऑटो पेमेंट कर देते हैं, तो बैंक का हाँ हाँ इंस्ट्रक्शन हाँ, तो कंपलसरी लगे। यस तो यस यस, तो ये जो देर इज ऑल्सो अ चार्ज दैट अमाउंट लिमिट कैन बी अल्टर्ड समटाइम। वो 1500 रुपए ईयर का रहता है स्टोरेज चार्ज, दैट इज ऑल्सो रिस्क की ऑटो डेबिट रहता है, हर साल अपने आप अकाउंट से डेबिट हो जाता है, तो उसमें कुछ रिस्क रहता है नहीं रहता? नहीं, उसमें अभी तक तो हम लोग को इतने थ्रेट नहीं दिखे, बट दैट इज अ रिस्की थिंग, दैट यू आर राइट, क्योंकि देखो अपना ऑटो सब्सक्रिप्शन है ना बेसिकली, हाँ, मतलब यस सब्सक्रिप्शन बेस्ड अमाउंट है ये सब, साल में जैसे ही होगा वो ऑटो डेबिट कर देगा करके। यस बट इसमें यस। हम लोग को इतने फ्रॉड क्यों नहीं दिख रहे पता है, क्योंकि अगर मैं अमाउंट भी ऑल्टर करता हूँ ना, फिर भी पैसा सामने वाले हैकर को नहीं जाएगा, वो तो फिर भी अमेजोन या गूगल पे ही जाएगा या उधर ही जाएगा, यू यस नो लाइक अमेजोन में जाएगा या तो फिर आपका गूगल स्टोरेज क्लाउड के लिए जाएगा बेसिकली। तो उसमें उसको पैसा नहीं मिलने वाला है at the end of the day। तो ऑल्टर कर सकता है, yes he can alter, but still he will not get the money because फिर सब्सक्रिप्शन का या तो फिर आपको रिसीवर डिलीट इज आइडेंटिफाइड। cannot be edited, और he will add a new service, he will add a new subscription service जहाँ पे वो अपने आप को खुद को पेमेंट करेगा या किसी और वेबसाइट के ऊपर वो पेमेंट करवाएगा बेसिकली। बट रिस्क है, बट स्टिल अभी लोग क्या कर रहे हैं पता है, नॉट चेंजिंग द, और दे आर एडिंग द सब्सक्रिप्शंस बट दे आर नॉट यू नो मॉडिफाइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। डेटा सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन था। हम्म तो ऐसा हो सकता है अपने सर्वर में कोई डेटा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल टैक्स ऑडिट या जीएसटी ऑडिट, कोई भी एक हम्म, साल का, मनी टाइम्स इट हैपेंस दैट कंट्रोल क्लिक करके अगर ड्रैग हो गया तो मूव होके अंदर चला जाता है कोई सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर। कोई राइट फोल्डर है, 3 फोल्डर, वो एक के अंदर मूव हो सकते हैं, लेकिन ऐसा राइट। कभी हो सकता है वो बाहर आ जाए, मेरे एक फोल्डर के अंदर 10 फोल्डर पड़े हुए हैं, वो 10 फोल्डर बाहर आ गए मेरा, ऐसा कभी वो हो सकता है, या वो किसी के मैन्युअली किया हो सकता है ऐसा? नहीं, वो तो मैन्युअली किया होगा किसी ने, मतलब अभी ओके। जैसे मेरा मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, अभी आप ऐसे बोल रहे हो ना कि ये देखो आईएसओ टूलकिट है, इसमें 2-3 फोल्डर्स है राइट, मतलब जो भी है हाँ लॉग के अंदर भी हाँ ऐसे, मतलब लेट मी जस्ट पुट इट टू यू दिस वे। हाँ, यहाँ पे देखिए सैंपल पॉलिसी, तो इसमें बहुत सारे फोल्डर रहेंगे, तो ये फोल्डर बाहर आएंगे ना, वैसे नहीं हो सकता अनलेस आई मैन्युअली टेक इट आउट, किसी ने मैन्युअली किया होगा हाँ। वो। तो सर वो कहीं से हम लॉग आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हेन कॉपीड एंड पेस्ट इज डन, क्योंकि अंदर भी पड़े 10 फोल्डर, अंदर भी पड़े और बाहर डुप्लीकेट भी हो गए, तो अभी उसको मतलब आइडेंटिफाई इसका करना, वो हाँ फोल्डर कब बना, किसने बनाया, किसने यूजर ने बनाया वो। हाँ, ये देखो ये अब जब राइट क्लिक करोगे ना, प्रॉपर्टीज में जाओगे, हाँ ओके, देन यू चेक ऑन द सिक्योरिटी, हियर यू विल कम टू सी, ओके। यहाँ पे नहीं, एक मिनट, इसका ओनर है ना, ओनर यहाँ पे दिख जाता है, नॉट इन दिस वन, वेट आई जस्ट शो यू। सर ये देखो राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज डिटेल्स पे जाएंगे ना, आप देखो ऑथर कौन है और लास्ट सेव किसने किया था। ओके। ऑथर मतलब जिसने फाइल बनाई, उसके बाद मैंने चेंजेस किए थे, रिवीजन कितनी बार हुआ है, 4 बार फाइल को चेंज किया गया था, और कंटेंट कब बनाया गया था और कंटेंट कब लास्ट में सेव हुआ था। लेकिन वो फोल्डर तेरे अंदर से 10 फोल्डर बाहर आए, कॉपी हुए, तो वो हाँ कब हुए वो भी आ सकता है ना उसमें, यानी फोल्डर का सर, जन्म कब हुआ, बाहर कॉपी किए हुए फोल्डर है तो कौन हाँ यूजर था, या सर्वर में राइट है तो राइट, किस नोड से हुआ? ये है ना, देखो सर देखो दो चीज होती है, मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, वो मतलब एक हम्म। एम्प्लॉय का लैपटॉप है ना, हाँ और हाँ। वो फोल्डर है वो तो सर्वर के ऊपर है, ओके। राइट।
तो मतलब क्या होगा कि सपोज आपके नेटवर्क में आपके ऑफिस में 4 कंप्यूटर है, ठीक है, और चारों 4 कंप्यूटर को उस सर्वर का एक्सेस होगा, हाँ राइट। अभी हाँ आपको डाउट है ये 4 कंप्यूटर में से किसी न किसी ने, एक कंप्यूटर ने तो उस सर्वर को एक्सेस करके फोल्डर को बाहर निकाला होगा, हाँ हाँ राइट। लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए तो वो सर्वर पे भी बैठ सकता है या तो उस पीसी पे भी बैठ सकता है, एम्प्लॉय का खुद का पीसी भी, राइट, दोनों जगह से हो सकता है ना ये। हाँ हाँ या तो सर्वर के पीसी के ऊपर बैठ जाओ, ठीक है, वहां से मैं फोल्डर बाहर निकालूं, या तो फिर मैं मेरे पीसी से एक्सेस करूं, कोई भी एक पीसी से एक्सेस हाँ करके सर्वर का फोल्डर बाहर निकाल सकता हूँ, राइट। हम्म ओके, तो मैंने एक सॉफ्टवेयर बता देता हूँ आपको। ये सॉफ्टवेयर मैं आपको यही बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि दोनों पीसी पे रन मारने पड़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि सर्वर पे भी और चारों 4 कंप्यूटर के ऊपर भी। तो ये देखो, ये जो सॉफ्टवेयर है लास्ट एक्टिविटी व्यू जो मैं यहाँ पे रन मार रहा हूँ, आप देख सकते हो इधर जो मेरा स्क्रीन पे इधर। यस ओके, आई विल जस्ट शो यू। दिख रहा है अभी? देखो ये हाँ लास्ट एक्टिविटी व्यू क्या करता है पता है, मेरे कंप्यूटर के ऊपर कौन सी फाइल या फोल्डर भी खाली टच भी हुआ होगा ना, उसका डिटेल निकाल के देगा बेसिकली, ओके मतलब कब कब एक्सेस किया गया था। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे, कैन यू सी ओपन फाइल और फोल्डर, कैन यू सी? ओके दिख रहा है इधर? कैन यू सी माई स्क्रीन विद द टाइम? ओके ओके, ओपन फाइल और फोल्डर, देखो टाइम के साथ आएगा, राइट। और ये मेरा कंप्यूटर कब सोया कब जागा, मतलब देखो कल 11:45 को मेरा सिस्टम शटडाउन हुआ था। अब आप ही मुझे बताओ कि मैंने सिस्टम चालू कब किया था। ओके ये सर ओके, प्रोस्पेक्टिव होगा ना, इंस्टॉल करने के बाद का डेटा निकालेगा, यानी ये हर सिस्टम में सर्वर में ये सॉफ्टवेयर रख देना चाहिए। हाँ सर, देखो आप अगर आपको मॉनिटर करना होगा ना सर, मतलब आपको देखना है कि आपका स्टाफ क्या काम कर रहा है बेसिकली आपके एब्सेंस में, या कौन सी फाइल को वो एक्सेस कर रहा है या क्या कर रहा है, मतलब इट्स लाइक ए सीसीटीवी कैमरा ऑन द कंप्यूटर बेसिकली, या राइट। तो उसके लिए ये वाला सॉफ्टवेयर है नोन एज एक्टिव ट्रैक। ये अभी कोविड के टाइम से बहुत चल रहा है। ये अगर आपने सॉफ्टवेयर, देखो मैं यहाँ पे लॉग इन करके बता देता हूँ, ये सॉफ्टवेयर अगर आपने आपके इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया ना एम्प्लॉय के कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, तो वो छुप जाएगा, दिखेगा नहीं। बाद में एम्प्लॉय क्या जो भी काम करेगा ना, आपको उसका पूरा डिटेल दिखेगा स्क्रीनशॉट के साथ, कौन सी फाइल को एक्सेस किया, कौन से फोल्डर को एक्सेस किया, कोई फाइल कितनी वेबसाइट के ऊपर जा रहा था, कितने टाइम उसने वेबसाइट के ऊपर बैठा, सब यहाँ पे दिखेगा आपको। लाइव रिपोर्ट भी दिखेगी यहाँ पे, देखो टॉप वेबसाइट, टॉप एप्लीकेशन, टॉप कैटेगरी, रियल टाइम डेटा भी आप कैबिन में बैठे बैठे देख सकते हो कि एम्प्लॉय के कंप्यूटर के ऊपर क्या चल रहा है करके। और ये 3 कंप्यूटर तक फ्री है, 3 कंप्यूटर तक आप फ्री में देख सकते हो उसको, ओके हिस्ट्री भी देख पाओगे और सब देख पाओगे करके यानी वैसे। सर अभी ये फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्वर डाला, तो सर्वर में कोई भी आदमी नोड से एक्सेस करेगा तो वो भी मिल सकता है, या नहीं उसके सिस्टम में ही डालना पड़ेगा? नहीं सर, आपको नोड में डालना पड़ेगा, ओके क्योंकि वो नोड से सर्वर को एक्सेस कर रहा है ना, सर्वर के ऊपर तो कुछ एक्सेस नहीं हो रहा है। ओके तो वो नोड, तो ये अब आपका पहले वाला सॉफ्टवेयर था या ये एक्टिव ट्रैक है, वो अपने नोड से भी सर्वर का पाथ दिखाएगा, उसने सर्वर की फाइल एक्सेस की है ऐसा? हाँ हाँ हाँ, ये जो लास्ट एक्टिविटी व्यू है ना सर, ये तो कोई हाँ भी मतलब मैंने मेरे पीसी से सर्वर को भी एक्सेस किया ना, तो उसका भी पाथ इधर बता देगा। ओके ओके मतलब ये क्या है, पास्ट में जा रहा है। और एक्टिव ट्रैक मतलब क्या है कि फ्यूचर में कुछ भी एक्टिविटी होगी ना, उसका भी वो रिकॉर्ड करेगा, स्क्रीनशॉट रखेगा, सब देखेगा। ये देखो ये ना, ये इट इज लाइक ए सीक्वेंशियल मैनर, एवरीथिंग हर एक मिनट पे मेरे पीसी पे क्या क्या एग्जीक्यूशन हुआ वो दिखेगा, और ये स्क्रीनशॉट के साथ देगा बेसिकली पूरा। ओके सर, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल करने के बाद करेगा ना, पहले का डेटा इंस्टॉल करने के बाद पहले का एनालिसिस तो नहीं देगा हमें, बाद ये का ही लास्ट देगा ना? एक्टिविटी व्यू तो पहले का भी एनालिसिस देगा ना, देखो ना लास्ट एक्टिविटी व्यू तो आप देखोगे मेरा 23 तारीख, 22 तारीख, 21 तारीख, 20 तारीख, नहीं नहीं, ऐसा सबका नहीं डेटा बोल रहा मिलेगा। मैं, आज ये मैं अभी इंस्टॉल करूंगा तो आज से मुझे ये ट्रैक देगा ना, परसों का या एक दिन पहले का ट्रैक नहीं देगा ना मुझे सॉफ्टवेयर कौन इंस्टॉल सा करने के बाद? सॉफ्टवेयर? ये लास्ट एक्टिविटी व्यू फॉर एग्जांपल मैंने अभी इंस्टॉल किया हाँ हाँ, आज तो की ये डेट पिछले में, पिछले तो देगा आपको, पिछले 10 5-7 दिन का, 5-10 दिन का या 10-15 दिन का पूरा डेटा देगा। ओके, तो सर ये इसका सॉफ्टवेयर का लिंक आप भेज सकते हैं? हाँ मैं भेज देता, ये रहा, मैं आपको गूगल पे ही बता देता हूँ, ओके ये रहा, मैं अभी चैट पे डाल दूँ इसको। ओके
ये रहा, मैंने डाला, देखो चैट पे डाल दिया। ओके, थैंक यू। यस, नाउ एनी अदर डाउट्स? आई होप ये क्लियर हो गया सब लोगों को। हाँ, बस क्योंकि मैनी अ टाइम इट इज अनइंटेंशनल, किसी को मालूम भी नहीं होता, वो भूल से भी उसने कुछ कर दिया, तो हम ढूंढते रहते हैं कि वो चीज कैसे हुई और टाइम वेस्ट करती है। राइट, नहीं सर, ये नाउ ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना, मतलब एक्टिव ट्रैक, और ये तो अभी मतलब बहुत डिमांड में है, मतलब 2-3 साल से, जस्ट टू नो कि बिकॉज आउट ऑफ 4 और 5 या 6 पीपल पता तो चले कि कौन ये एक्टिविटी कर रहा है करके। बस सर। सर ये एक्टिव ट्रैक को थोड़ा ज्यादा एलाबोरेट कर सकते हैं आप? हाँ, उसको थोड़ा ज्यादा मींस कैसे यूज कर सकते हैं किसी के पीसी में? मींस वो मेन पर्पस की अपना एम्प्लॉय को ट्रैक करना हो तो उसके लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं? थोड़ा डिटेल में एलाबोरेट। सर देखो, एक्टिव ट्रैक में क्या होता है कि सपोज आपके ऑफिस में मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 पीसी है, ठीक है? तो ये एक्टिव ट्रैक क्या करेगा पता है आपको, है ना? ये एक्टिव ट्रैक हर तीनों 3 पीसी में डालना पड़ेगा बेसिकली। ओके, तो आई जस्ट शो यू, वेट। हाँ, देखो आपने जैसे ही एक्टिव टैग डाल दिया ना पीसी के अंदर, वो छुप जाएगा। अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 1-2 सेशन ले रहा था सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, एक सीए सर ने मेरे को इतना अच्छी तरह से समझाया था। उन्होंने क्या बोला था कि सचिन, जब तक मैं मेरे कैबिन के अंदर बैठा हूँ ना, वो बाहर का स्टाफ एकदम शराफत से काम करता है, ठीक है? लेकिन मैं जैसे ही ऑफिस के बाहर जाता हूँ एक मीटिंग करने के लिए, तो कोई फेसबुक चालू करेगा, कोई मूवी डाउनलोड करेगा, कोई क्रिकेट का लाइव मैच स्कोर देगा। एक बार तो ऐसे हुआ था कि मेरे को मेरे कैबिन वैसे दिख रहा है, सामने वाले के मतलब जो मेरा आर्टिकल है उसके चश्मे के रिफ्लेक्शन में दिख भी रहा है कि भाई साहब कोई गेम ही खेल रहा है, सॉलिटर या ऐसे कुछ भी। लेकिन मैं जब तक उठ के वहां से वहां पे जाता हूँ, वो बंदे का हाथ इतना फास्ट है कि वो गेम बंद, एक्सेल चालू, टैली चालू, और एक आध 2 एंट्री भी मार देता है। उसको बोल भी नहीं सकते कि बेटा पत्ता इधर से इधर लिया होता तो गेम ही खत्म हो गई होती तेरी, राइट? बिकॉज सब एक्टिविटी बंद कर चुका है वो तब तक। तो ये एक्टिव ट्रैक क्या करता है, इन योर एब्सेंस इट विल रिकॉर्ड, मतलब कंप्यूटर पे जो भी एक्टिविटी होगी, फेसबुक के ऊपर 30 मिनट बैठा, जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर 2 मिनट ही था, टैली कुछ 40 मिनट के लिए चालू रखा था, लेकिन सामने कुछ पबजी भी चालू रखा था, व्हाटएवर जो भी चालू रहेगा ना, उसका पूरा ये स्क्रीनशॉट और पूरा एप्लीकेशन लॉग बना के देगा। तो यू कैन सी लाइव ऑल्सो कौन सी वेबसाइट के ऊपर है, और अगर लाइव नहीं देखना होगा तो आप आराम से बैठ के उसकी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो करके। सर ये जो आपने ओपन किया ये तो कोई ब्राउजर है, उसका मींस एप्लीकेशन डाउनलोड अलग से होगा? हाँ देखो यहाँ पे ना ये तो मैंने क्या डायरेक्ट रिपोर्ट देखने के लिए दिया है। कैन यू सी डाउनलोड एजेंट दिख रहा है ऊपर राइट हैंड साइड पे इधर? तो ये वाला जो एजेंट आपको उस पीसी के अंदर इंस्टॉल करना है जिस पीसी के ऊपर आपको मॉनिटर करना है। ओके, फिर सेम उसका यूजर आईडी पासवर्ड बनाना होगा, फिर वो मेरे यूजर आईडी से मैं एक्सेस करके देख सकता हूँ कौन से पीसी पर क्या एक्टिविटी हुई है वैसे? हाँ यस, अभी देखो मैंने सचिन नाम का एक यूजर आईडी और पासवर्ड बना दिया ना, scanetsecure@gmail.com, ठीक है? मेरे पास इसका पासवर्ड आ गया। अब मैं 3 कंप्यूटर को फ्री में मॉनिटर कर सकता हूँ। कैन यू सी? अब मैं जब ये एजेंट डाउनलोड कर लूंगा मेरे पीसी के ऊपर, अब मुझे आपका पीसी पे मॉनिटर करना है, तो ये सिर्फ एजेंट जाके सिर्फ आपके पीसी के ऊपर जाके इंस्टॉल करना है, रन करना है, वो छुप जाएगा बाद में। रन कर दिया, इंस्टॉल हो गया, मैं बाद में इसके अंदर फिर से लॉगिन करूंगा स्कैनेट सिक्योर, तो यहाँ पे मुझे 1 of 3 दिखेगा और आपका पूरा स्क्रीनशॉट और सारी रिपोर्ट्स मुझे यहाँ पे दिखती जाएगी। ओके, तो मैं जितने भी पीसी पर इंस्टॉल करना है वो सेम यूजर आईडी से वो उसको इंस्टॉल करना है? आपको है ना फिर वो यूजर आईडी ये एजेंट ही रन करना है आपको 3 पीसी तक, यही वाला एजेंट। ओके, तो पहले इसमें आई थिंक तो पहले ये यूजर आईडी क्रिएट करके फिर ये लॉगिन करके फिर एजेंट रन करना पड़ेगा। परफेक्ट, यस यस। ओके सर, फिर उसका पूरा एक्टिविटी लॉग ये यूजर आईडी में से हम देख सकते हैं कि कौन से स्क्रीन पर मींस कौन से सिस्टम पर क्या एक्टिविटीज हुई है, कौन से अभी कौन सा स्क्रीन चालू है और उनकी सारी हिस्ट्री भी। यस, मींस उसमें सपोज 8 वर्किंग आवर्स है तो उसमें से बाइफिकेशन दिखाएगा कि 2 घंटा इसने टेली में काम किया, 2 घंटा एक्सेल में काम किया, और डेट पे पूरा लॉग दिखाएगा उसमें। यस यस यस, 11 बजे से लेके 12 बजे तक अगर 3 वेबसाइट भी ओपन होगी तो वो कौन सी 3 वेबसाइट थी और तीनों 3 वेबसाइट के ऊपर कितनी देर काम चल रहा था। तो ये मतलब खुद का प्रोडक्टिविटी देखने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि सपोज मैं खुद काम करता हूं तो मेरा प्रोडक्टिव काम आज कितना हुआ, सपोज 8 घंटे मेरा वर्किंग आवर है तो उसमें से मैंने प्रोडक्टिव वर्क कितना किया और नॉन प्रोडक्टिव फेसबुक वगैरह कितना किया अपने स्क्रीन पर। एक्चुअली एक ही प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे टैली चालू कर दिया, मतलब एक सोचो इधर टैली चालू हो गया, ओके?
लेकिन बाद में मैं काम कर रहा हूँ इधर गूगल क्रोम के ऊपर और ओपेरा के ऊपर और एक्सेल के ऊपर, बट कंप्यूटर के लिए क्या पता है, कंप्यूटर के लिए टैली चालू है। ओके, हाँ, मतलब वो रीड करेगा कि कौन सा एप्लीकेशन चालू है, उसको वो टाइम अलॉट कर देगा। हाँ, तो अभी सपोज 11 बजे मैंने टैली चालू किया लेकिन मैंने काम सिर्फ 10 मिनट के लिए किया, लेकिन नीचे चालू था और मैंने 1 बजे बंद किया, तो उधर वो बताएगा 11 से 1 तक टैली चालू था करके। ओके, लेकिन वो साथ में वो ये नहीं 11 से 1 बताएगा तक मींस 11 से मल्टीपल 1 एप्लीकेशंस दिखाएगा। हाँ, लेकिन 11 से 1 एक्सेल भी चालू था, 11 से 1 क्रोम ब्राउजर भी चालू था, उसके अंदर ये वाली वेबसाइट, वो सब दिखा देगा बेसिकली। ओके, फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट के अंदर जाके चेक करना पड़ता है कि सचमुच में कितना क्या चालू था करके, मतलब कौन से एप्लीकेशन के ऊपर वो काम कर रहा था। अच्छा, तो इसमें वो भी दिखाएगा मींस वो पर्टिकुलर टाइम पर उसके डेस्कटॉप पर कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही थी, हाँ, मींस फेस पर yes, क्या था वो भी दिखाएगा। हाँ, हाँ, स्क्रीनशॉट में आ जाएगा, वो पूरा स्क्रीनशॉट पे आ जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। sure. Yes, any doubts first please ask। मतलब और कुछ माइंड में डाउट आ रहा है, मतलब कुछ ऐसे इसके लिए, मतलब जैसे आपके ऑफिस के रिलेटेड हो गया या समथिंग टू डू विद अ पर्सनल, प्लीज आस्क। दूसरा सर एक है कि अभी सपोज मैं मोबाइल यूज करता हूँ, तो अभी मेरे मोबाइल में मान लीजिए 4-5 एप्लीकेशन इंस्टॉल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मेल है, वगैरह है। अभी मुझको ऐसा कुछ सेटिंग हो सकता है कि सपोज मैं मेरा नेट चालू करूँ या वाईफाई चालू करूँ, तो मुझको अगर मेल का काम है तो सिर्फ मेल के ही नोटिफिकेशन आए, मतलब नोटिफिकेशन का सेटिंग मुझको चेंज नहीं करना, लेकिन व्हाट्सएप के कोई मैसेज डाउनलोड ही नहीं हो। अभी क्या होता है, मेरा सपोज मोबाइल मैंने बंद करके रखा है, लेकिन मुझको काम आया किसी मेल का, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज आया तो मैं उसमें उलझ जाऊंगा। तो ऐसा कुछ सेटिंग एप्लीकेशन वाइज हो सकता है कि व्हाट्सएप का मैसेज डाउनलोड ही ना हो या फेसबुक के नोटिफिकेशन ही ना आए। नॉट नोटिफिकेशन सेटिंग, वो तो हम मोबाइल में बंद कर सकते हैं, लेकिन उसका डेटा तो डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका होगा। हाँ, डेटा देखो दैट वेज ना, ये बहुत टीडियस काम हो जाएगा, ऐसे एप्लीकेशन है, बट फिर हर एक बार आपको ना फिर मैन्युअली जाके फिर से उस एप्लीकेशन के लिए इंटरनेट शुरू करना पड़ेगा बेसिकली। एक्टिव करना पड़ेगा। हाँ, वरना एक ऑप्शन आप ये कर सकते हो कि जैसे आप बोल रहे हो ना, नोटिफिकेशन ना आए और वो बैकग्राउंड में रन हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब क्या, आप सेट कर सकते हो कि पहले मुझे सिर्फ ईमेल का नोटिफिकेशन आए या मैं ईमेल का ही काम करूँ, तो ऊपर जो आपका वो टास्क बार रहता है, मतलब ऊपर जो रहता है ना, उस पर कुछ भी नहीं दिखेगा आपको बेसिकली, भले बैकग्राउंड में रन होके क्यों ना बैठा हो। नहीं सर, वो ऊपर तो आता है, वो तो ऑलरेडी बंद करके रखा है जैसे हाँ, लेकिन फिर भी क्या है, वो फिर वो व्हाट्सएप में ऊपर अटेम्प्ट तो हो ही जाते हैं देखने के लिए कि चलो एक बार देख लेते हैं मैसेज क्या है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि जिससे मतलब मैं नेट चालू करूं तो ऐसा कुछ व्हाट्सएप तभी के लिए ब्लॉक ही हो, उसका कुछ मैसेज ही नहीं आए, भले ही नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन मैसेज ही नहीं आना चाहिए उसके डेटा में ऐसा। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन फिर वो कर सकते हो, लेकिन फिर वापस व्हाट्सएप के लिए इंटरनेट शुरू करना होगा ना, तो मैन्युअली जाके फिर से अलग सिलेक्ट से, करना पड़ेगा। अलग से मीन्स एप्लीकेशन वाइज वो सेटिंग करना पड़ेगा। हाँ, यस, ठीक है, ओके। ओके। रिसेंटली अननोन, निकुंज जी, ये है ना, किसी ने आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन किया है, बेसिकली यूपीआई के साथ कोई अकाउंट लिंक करने की ट्राई की है, बंधन बैंक का, मतलब देखो स्टार्टिंग में लिखा है यूपीआई ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर डमी अकाउंट एंड बंधन बैंक, यू जस्ट नीड टू हैव अ वर्ड विद योर आईसीआईसीआई बैंक ओनली, कि ये क्या था करके। ओके, यस, एनी अदर डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क मी। और कुछ डाउट्स हो रहे हैं माइंड में? हाँ सर, अभी जो हमने बात की वो फाइल और फोल्डर की प्रॉपर्टीज में देखने की, लास्ट सेव या ऑथर वगैरह देखा हमने। हाँ, हेलो। हाँ, तो सर वो फोल्डर की प्रॉपर्टीज नहीं हो रही है, फाइल की प्रॉपर्टी में वो दिख रहा है, जो हम राइट क्लिक कर डिटेल्स देखते हैं तो फोल्डर का हमें देखना है, फोल्डर कब क्रिएट हुआ या किसने क्रिएट किया, वो कहीं से हो सकता है। फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखनी होगी ना, तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दे देता हूँ, वो नीरसॉफ्ट के अंदर ही है, जो आपको बता देगा कि फोल्डर कब क्रिएट हुआ था और वो कैसे रन हो रहा था। मेरे को ना एक्चुअली वो परफेक्ट सॉफ्टवेयर का नाम ये नहीं आ रहा। फोल्डर, नीरसॉफ्ट फोल्डर चेंजेस व्यू, कैन यू सी दिस? वैसे ये दिख रहा है?
ये सॉफ्टवेयर के थ्रू मे बी दिस विल हेल्प यू। ये रहा, मैं इसका भी ना एक बार आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, वरना एग्जैक्टली मेरे को और एक बार चेक करना पड़ेगा, बट मोस्टली ये 2-3 सॉफ्टवेयर से आपका काम हो जाना चाहिए। ओके I'll just see if I can see Microsoft folder properties. हाँ सर, मैं आपको बता दूंगा, मोस्टली तो आई गेट दिस, मतलब ये सॉफ्टवेयर 2-3 है बट मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहे उनके। ओके ओके Similarly, sometimes happen that employee deletes mail from client. तो वो तो ट्रैश में पड़ा होगा तो ही हम देख पाएंगे जीमेल में, अगर फॉर एग्जांपल याहू या जीमेल है तो ट्रैश में राइट पड़ा होगा या उसका एक्टिविटी लॉग देखेंगे। लेकिन वो अभी 1 महीना रह के हमको मालूम पड़े, वो क्लाइंट या अकाउंटेंट को बोलेगा हमने इस तारीख को आपको मेल किया था, वो फॉरवर्ड भी करता है तो वो बॉडी भी बोलती है मेल की कि इसने एक्चुअली फॉरवर्ड किया था। तो वो हम ट्रैक कर सकते हैं कि किस टाइम पे हमारे जीमेल अकाउंट से वो डिलीट हुआ। नहीं सर, डिफिकल्ट है, वरना अगर आपको चाहिए ना तो आप एक काम कर सकते हो, मतलब ओके जीमेल अकाउंट के अंदर है ना एक ऑटो फॉरवर्ड करके एक ऑप्शन आता है, फॉरवर्डिंग ऑप्शन इन अ जीमेल यस अकाउंट। यस आप है ना यस क्या करो पता है, हर एक मेल जो आती है ना उसकी एक कॉपी ऑटो फॉरवर्ड कर दो तो अनदर ईमेल आईडी बेसिकली। जनरली बराबर बहुत सारे अभी कंपनीज यही काम कर रहे हैं, बिकॉज एक कॉमन ईमेल आईडी है जो शेयर हो रहा है ना बिटवीन 2 और 3 एम्प्लॉइज। पता नहीं कि कौन से एम्प्लॉय किसके साथ क्या करने वाला है, स्पेशली डिलीट वाला। तो फिर उन लोग ये मतलब एक ऑटो फॉरवर्ड का ऑप्शन डाल रहे हैं। बराबर है ओके। तो यानी डुप्लीकेट मेल बॉक्स हो गया मेरा, जो इसमें आएगा हाँ उसका डुप्लीकेट मेल बॉक्स में नया ईमेल एड्रेस एक बना के वो बैकअप ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल। हाँ ओके एनी अदर क्वेरीज दैट यू हैव प्लीज आस्क मी, मतलब आपको जो डे टू डे ऐसी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज अगर कुछ फेस हो रही है तो लेट मी नो। अच्छा मैं ना एक रिक्वेस्ट, मतलब एक जो मेरा एक पॉइंट है जो मेरे को कवर करना है, बेसिकली इट्स समथिंग टू डू विथ योर आधार कार्ड। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने फोन के ऊपर बायोमेट्रिक दे के रखे हैं? मतलब फोन को अंगूठे के थ्रू लॉक किया है या फेस या आईरिस मतलब आंख दिखा के लॉक कर रहे हो आप लोग? How many of you are doing that? Yes, majority, I mean quite a few of you, right? हाँ ओके, तो मेरी एक रिक्वेस्ट क्या है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट इतना याद रखिए दैट यू आर पुटिंग योर बायोमेट्रिक ऑन द फोन एंड इन इंडिया आवर बायोमेट्रिक इज लिंक टू अवर आधार कार्ड। आपको पता रहेगा आधार में अपने बायोमेट्रिक लिए गए थे, एंड आधार इज द ओनली प्रूफ इन इंडिया दैट कंटेन्स अवर बायोमेट्रिक्स, एंड इन फ्यूचर आधार विल बी लिंक टू ऑल अवर फाइनेंशियल डेटा, राइट? अब आप उस फोन के ऊपर बायोमेट्रिक दे रहे हो जिसका पूरा हार्डवेयर जो है वो चाइना संभालता है और यूएस पूरा उसका सॉफ्टवेयर संभाल रहा है। मतलब आप कोई भी फोन लो लोगे ना, पीछे लिखा हुआ आता है मेड इन चाइना, एंड यूएस इज नोन एज द किंग ऑफ सॉफ्टवेयर, विंडोज एप्पल यू नो कुछ भी आप ले लो, फेसबुक जीमेल सब यूएस के पास पड़ा है। तो इफ यू नो वी कैनॉट चेंज अवर बायोमेट्रिक्स, मतलब पूरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं बट बायोमेट्रिक जल्दी चेंज नहीं होते। तो इतना प्रेशियस चीज हम लोग फ्री में दे रहे हैं सिर्फ एक फोन को लॉक करने के लिए, वो भी उस फोन के ऊपर जिसके परमिशन हम लोग ने पढ़े नहीं है और जिसने पीछे क्या राइट्स लेके रखा है वो भी नहीं पता है। तो मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है, प्लीज एडुकेट योर यंगर जनरेशन ऑल्सो नॉट टू गिव देयर प्रेशियस बायोमेट्रिक्स ऑन द फोन।
और जिन्होंने ये दे दिया है, ओके, तो मैं कंपलसरी होमवर्क आपको बता रहा हूँ। आपको आधार की वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक या बायोमेट्रिक्स करके एक ऑप्शन आ रहा है, कैन यू सी दिस? इसके ऊपर टिक करना है। आपको ये ऑफकोर्स ये एग्री मतलब जो भी है अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर डालना, वेरिफिकेशन कोड डालना, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दोगे तो इससे क्या होगा, आपका बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा। वाई एम आई सेइंग दिस कि कल उठ के अगर किसी ने आपका बायोमेट्रिक यूज करके आधार के डेटा को एक्सेस करने की ट्राई की ना, वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपका बायोमेट्रिक जो है वो क्या है, वो लॉक्ड है करके। आई होप ये क्लियर है। प्लीज डू दिस फॉर ऑल योर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। जिन्होंने भी बायोमेट्रिक दिए ना मोबाइल के ऊपर, वो सबको अपना अपना आधार जाके बायोमेट्रिक लॉक करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो चला गया उसका तो कोई इलाज नहीं है ना दूसरा, के सैमसंग के डेटा में से हाँ। रिमूव कर सके बायोमेट्रिक्स ऐसा? नहीं 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 नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो गया है उसका अभी फिलहाल के लिए तो कोई सोल्यूशन नहीं है इसके लिए, बट फ्यूचर में ना जाए इसके लिए वी विल हैव टू डू दिस एंड आल्सो एडुकेट योर यंगर जनरेशन नॉट टू गिव देयर बायोमेट्रिक्स बेसिकली। अभी क्योंकि तक ये आगे आधार का बायोमेट्रिक डेटा कहीं पर यूज होना चालू हुआ है प्रैक्टिकली? क्योंकि अभी तो जनरली ओटीपी से वेरिफिकेशन होता है आधार का, कहीं भी करना है तो हाँ, अभी तक तो बायोमेट्रिक्स नहीं, से कहीं नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, बिकॉज अभी तो आधार डेटा लिंक कर रहा है, अभी भी डेटा लिंकिंग ही चालू है। मतलब अगर आपने देखा होगा ये बजट में, उसके प्रीवियस बजट में भी ऐसा बोला गया ना कि पैन कार्ड नहीं होगा तो भी यू कैन फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न हाँ, यूजिंग मतलब आधार। अभी कई जगह पर आधार का ओटीपी से तो वेरिफिकेशन होता है, मतलब आधार में अपना जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो हमने यूज मींस उसके वेरिफिकेशन आधार और ठीक के करवाते कई जगह पर। हाँ, तो सेम बायोमेट्रिक का तो आई थिंक अभी तक कहीं यूज नहीं हुआ। नहीं बायोमेट्रिक जो यूज हो रहा है वो सिर्फ आधार वेरिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है। इन द सेंस अभी आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए ना, आपने आधार कार्ड नंबर दिया ना, तो वो बोलेगा अंगूठा मारो, आपका आधार वेरीफाई होगा, तो वो वेरिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है। बट उसके लिए भी अभी भी अपना डेटा मार नहीं गया है, डेटा लिंक नहीं हुआ है पीछे बेसिकली। बट अगले 1-2 साल में या 3 साल में जब ये डेटा लिंक होना शुरू हो जाएगा ना, तब ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट अगर आपको चाहिए ना तो आप और एक काम भी कर सकते हो जो मैंने किया है। वी आर नॉट इवन सपोज टू गिव अवर आधार कार्ड नंबर, अपने को तो अपना आधार कार्ड का नंबर भी बचाना चाहिए। तो आप क्या, मैं क्या करता हूँ, माय आधार की वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, वीआईडी जनरेटर, इधर वर्चुअल आईडी जनरेटर। वर्चुअल आईडी मतलब क्या, कि मैं यहाँ पे है ना एक मेरे आधार कार्ड के नंबर के सामने बदले मैं एक टेम्पररी आईडी बनाता हूँ। तो कोई भी मुझे मांगता है, बोलता है ना कि सर आधार कार्ड का नंबर दो, तो मैं मेरा एक्चुअल आधार कार्ड का नंबर देने के बदले ये 16 डिजिट का नंबर दे देता हूँ, जिसके पीछे मेरा आधार लिंक्ड है। ऑफकोर्स जिसके पीछे मेरा आधार लिंक्ड है, बट दैट वेज आई एम नॉट एक्सपोजिंग माई आधार कार्ड का नंबर बट सर बेसिकली। मोस्टली जगह पर तो वो आधार कार्ड का फिजिकल कॉपी मींस जेरोक्स कॉपी ही मांगते हैं, तो उसमें तो आधार नंबर आ ही जाएगा ना। नहीं, देखो जेरोक्स कॉपी के लिए भी क्या है, जब मैं ये बनाता हूँ ना आधार कार्ड का वर्चुअल नंबर बना दूंगा ना, तो मेरे को भी ये देखो ऐसे आधार कार्ड निकल के आता है इसी साइड के ऊपर, और यहाँ पे मेरा वर्चुअल नंबर आ जाता है। तो मैंने इसका प्रिंट आउट निकाला है, इसका लेमिनेशन किया है, अभी होटल में चेक इन कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो यही दिखा देता हूँ। और कौन सा ओके, तो लोग सेम हम यूज कर सकते हैं आधार से हाँ रिप्लेसमेंट करके, ये यूज कर सकते हैं। हाँ, बहुत लोग होते हैं जो डिफरेंस दिखा सकते हैं कि आधार 12 डिजिट नंबर होता है और वर्चुअल आईडी से 16 डिजिट नंबर, बट लोग इतना देखते नहीं है। उनको जब तक आधार कार्ड दिखता है उन लोग चला लेते हैं। So if you can do this also, it will be preferred, मतलब it will be like better basically। ये ऑप्शंस है बट रेयरली लोग यूज करते हैं इसको ऐसे। बट हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है, हम नहीं तो हमारी जो यंगर जनरेशन है ना, अगर उन लोग ने ये मतलब सिक्योरिटी चालू कर दी ना, इट विल बी बेटर फॉर देम, बिकॉज अगले 2-3 साल में ये सब डेटा अपना मेन जो रहेगा ना वो आधार के साथ ही रहने वाला है। अपना पीपीएफ, अपना एलआईसी, अपना टीडीएस, अपना इनकम टैक्स, बैंक स्टेटमेंट्स, एवरीथिंग दे आर गोइंग टू प्लान इट टू लिंक इट विद दिस आधार itself। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए थे। एनी डाउट्स इन दिस प्लीज आस्क मी, मतलब और कुछ इसमें माइंड में डाउट्स रहे तो मुझे पूछिए सर।
ओके, सो आई हैव वन मोर पॉइंट टू कवर. आप में से कितने लोग ये कोऑपरेटिव बैंक या बैंक का ये कर रहे हो, सिस्टम ऑडिट कर रहे हो? एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग स्टॉक ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट. बट आप में से कितने लोग, पता है अभी आरबीआई ने कंपलसरी किया है हर एक बैंक को सिस्टम ऑडिट करने के लिए. तो बैंक जनरली क्या करता है पता है, स्टॉक ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट देता है और बोलते हैं मेरा सिस्टम ऑडिट भी साइन कर देना. हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग दैट? कोई सिस्टम ऑडिट कर रहा है बैंक का? अगर नहीं कर रहे हैं तो गुड, बेसिकली बिकॉज वी जस्ट वांट, यू डू नॉट वांट यू टू साइन लाइक दैट. बेसिकली पूरा टेस्टिंग कर लेना बैंक की सिस्टम्स का, देन यू सबमिट दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट. But if you're not doing system audit, well then it is good thing, then I might not need to even cover this particular point. Okay, अब मैं और एक पॉइंट सॉफ्टवेयर बता देता हूँ आपको, ये आपको घर पे और ऑफिस पे बहुत काम आएगा. इसका नाम है नेटकट, NETCUT, नेटकट. सी आज जब आप, अगर आपको घर किसी के साथ थोड़ा मस्ती करना होगा, ओके, या ऑफिस पर किसी को मस्ती करना होगा, तो आप ये सॉफ्टवेयर यूज करते हो नेटकट. ठीक है, ये नेटकट देखो मैंने जैसे रन किया, नेट क्या करेगा, मेरे वाईफाई में भी लोग कनेक्टेड होंगे ना, उनका डिटेल्स देख. मतलब क्या, देखो मेरे OnePlus 3 मतलब OnePlus 7 एक फोन है मेरा, ये नेटवर्क का मतलब राउटर है. इधर मेरा और एक पीसी आपको दिख रहा होगा इधर, राइट. फिर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे और एक एंड्रॉइड का फोन है, यहाँ पे और एक एंड्रॉइड का फोन है. तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा पता है, आपने जैसे ही नेटवर्क रन किया ना, आपको क्या दिखेगा पता है, आपके घर पे आपका मोबाइल, वाइफ का मोबाइल, बच्चे लोग का मोबाइल, आपका लैपटॉप एंड एवरीथिंग दैट. फिर वाइफ के मोबाइल के प्रति थोड़ा मस्ती है तो आप क्या कर सकते हो, वाईफाई मतलब वाइफ के मोबाइल को ऐसे सिलेक्ट करके ये जो वाईफाई का ऑप्शन है ना, उसके ऊपर टिक कर दोगे ना, ऐसे ये रेड हो गया, तो होगा क्या पता है, पूरे घर पे फर्स्ट क्लास वाईफाई चलेगा सिवाय वाइफ के मोबाइल के ऊपर. मतलब आइकन दिखेगा कि वाईफाई कनेक्टेड है, लेकिन ना ही एक व्हाट्सएप आएगा ना ही एक पेज रिफ्रेश होगा. आई होप ये क्लियर है. और बाद में दया आएगा सपोज, तो फिर से आइकन के ऊपर क्लिक कर देना, तो उधर वाईफाई फिर से शुरू हो जाएगा. क्लियर एवरीबॉडी? आई होप दिस वाज क्लियर, दिस पॉइंट. सर इसमें लॉगिन वगैरह रिक्वायर है या ओपन ही है, ऐसे वेबसाइट ओपन है करेंगे और बस खाली नेटकट इंस्टॉल करो, रन करो, आपको सारे डिवाइसेस दिख जाएंगे कितने लोग कनेक्टेड है करके. ओपन है. और ये सॉफ्टवेयर अगर आपने ऑफिस में भी रन किया तो ऑफिस में भी पता चल जाएगा कि स्टाफ अपने पर्सनल मोबाइल पे यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, या अपना घर का वाईफाई का पासवर्ड भी किसी को पता चला है कि नहीं चल करके. आई होप ये क्लियर है एवरीवन, राइट. सो इन दिस वे हम लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि अपने वाईफाई पे कितने लोग कनेक्टेड है. आपको पता है कि आपके घर पे 3 या 4 डिवाइस है, 1 या 2 कंप्यूटर है, अगर उससे ज्यादा डिवाइस दिख गए, मतलब क्या, it means somebody knows the Wi-Fi password and is using a Wi-Fi for free. ऑफिस में भी अगर कोई और एक्स्ट्रा लोग कनेक्टेड होंगे तो भी इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू दिख जाएंगे करके. क्लियर? यस. नाउ इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स और क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी. मतलब माइंड में और कुछ है तो मुझे पूछिए, अदरवाइज आई हैव अनदर कलीग मिस्टर जेम्स, जो मेरे साथ बहुत सारे सेशंस देते हैं, तो ही विल जस्ट मेक यू गो थ्रू सम स्मॉल सेफ्टी टिप्स आल्सो बेसिकली. हेलो. हाँ. सर हम अगर कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नेट यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ध्यान रखने का कि वो राउटर पे एक केबल उसका कनेक्ट होता है
और फिर Right. एक वो और फिर हमारे वाईफाई या पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में हमें वो यूज करने का एक्सेस देता है, तो हमारे पीसी में सब डेटा है वगैरह है, तो उसके लिए कोई स्पेशल सिक्योरिटी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि नहीं सर, जनरली अभी क्या हो रहा है कि जैसे अभी गूगल क्रोम अगर आप यूज कर रहे हो ना बेसिकली, या कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज करो जिसके थ्रू आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, तो वो सारा अभी एंक्रिप्टेड ही जा रहा है, डेटा ही है ना पूरा एंक्रिप्टेड जा रहा है। जैसे अभी आपने HTTPS की वेबसाइट यूज कर ली तो डेटा जा रहा है, तो वो वाईफाई वाले को दिखेगा, मतलब इंटरनेट वाले को दिखेगा कि भाई डेटा जा रहा है, बट क्या डेटा जा रहा है वो उसको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज अच्छा मेजोरिटी अच्छा ऑफ डेटा इज गोइंग एंक्रिप्टेड। ओके 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 वैसा है। थैंक यू तो जैसे व्हाट्सएप में भी एंक्रिप्शन डाल दिया है, गूगल क्रोम में भी एंक्रिप्शन है, नहीं, तो हमारे वैसे पीसी का एक्सेस तो चलो ये अपना पीसी में एक्सेस ले सकते सर। वो मेरे पीसी का एक्सेस ले सकता है कि नहीं ले सकता? नहीं सर, पीसी का एक्सेस नहीं ले सकता, बट वो आपका नेटवर्क जरूर स्कैन मार सकता है कि आपके ऑफिस में कितने पीसी है करके। अच्छा 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 उसने आपके राउटर के अंदर ही उसका खुद का वायर डाला है ना, तो वो राउटर के थ्रू स्कैन मरवा जी सकता है कि जी आपके ऑफिस में कितने पीसी है। और एट द मोस्ट आपके पीसी के अंदर जो शेयर ड्राइव्स होते हैं ना, शेयर ड्राइव्स बेसिकली, हाँ बस उसका एक्सेस मिलने का चांस है। शेयर ड्राइव अच्छा, तो सर जैसे मैंने सर्वर बनाया है और वो तो स्टाफ कोई एक्सेस, तो वो शेयर ड्राइव कहलाता है कि वो शेयर ड्राइव है, कोई वो एक? शेयर ड्राइव है। तो डेटा अच्छा, लाइन तो वो ड्राइव को वो एक्सेस कर सकता है? हाँ, वो डिपेंड्स है। जल्दी सर्विस प्रोवाइडर ऐसे करेगा नहीं, लेकिन अगर आपको डाउट है, जैसे कोई ब्रांडेड, मतलब आपने कोई अच्छा सर्विस प्रोवाइडर लिया होगा तो वो इसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि उनके ऊपर भी ऑडिट होते हैं बेसिकली। बट ओके अगर आपको लगता है कि ये कोई लोकल है और ये मस्ती कर सकता है ऐसे, तो यस, ही कैन जी। गेट एक्सेस टू द शेयर ड्राइव। अच्छा, तो सर हमें स्टाफ को कोई फोल्डर का शेयरिंग देते समय कुछ ऐसे ध्यान में प्रोटोकॉल कर सकते हैं? आप क्या करो पता है, वो जो फोल्डर है ना सर, उसको ये कर दो, क्या बोलते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रख दो। स्टाफ को तो पासवर्ड पता होगा, ठीक है, लेकिन अगर बरोबर। किसी अच्छा को फोल्डर करने की ट्राई की तो उसको पासवर्ड चाहिए रहेगा। ओके ओके એના સર્વિસ પ્રોવાઈડર ને કોઈ માણસ જઈને આપણા બધા એક્સેસ કરીને ડેટા કોપી કરી શકે એના હું આપણે કોઈ માણસ થયો ગયો ને એ આપણા ડેટા કોપી કરીને પોતાના સિસ્ટમમાં લઈ જાય લઈ શકે યસ પોસિબલ તો ફ્યુચર તો આપણા ડેટા સિક્યોર નહીં હોય ને પ્રાઇવેટ પ્રોવાઈડર पासवर्ड। हाँ सर। हेलो। हाँ। हाँ सर, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब अभी मेरी ऑफिस में जो डेटा है वो मुझको अभी कोविड के बाद क्या हो गया कि कभी भी मान लो वर्क फ्रॉम होम जैसा कंडीशन हो गया, और इधर केस में मुझको ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि मेरा डेटा ऑफिस का अगर ऑफिस बंद है तो भी मैं कहीं बाहर से एक्सेस कर सकूं। लाइक मेरे ऑफिस के पीसी पर जैसा दिखता है सेम ही फॉर्मेट में मैं ऐसे एक्सेस कर सकूं, इंक्लूडिंग ऑल एक्सेल फाइल्स, ऑल फोल्डर्स, ऑल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो उसके लिए मोस्ट सिक्योर और मोस्ट यूजर फ्रेंडली आपके हिसाब से क्या ऑप्शन है? जैसे कुछ लोग वीपीएन बताते हैं, कुछ नेटवर्क अटैच स्टोरेज जैसा नास जैसा होता है, तो उसमें से आपके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है कि जो सिक्योर भी हो और मोस्ट यूजर फ्रेंडली की मैं जैसे मुझको ऐसा ही लगे मेरे लैपटॉप पर कि मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ ऐसे? सर तो फिर आप ये नैस ही ले लो। जब भी लोग क्या कर रहे हैं पता है, एक सर्वर बना रहे ऑफिस के अंदर, ठीक है, उस सर्वर के ऊपर एक स्टैटिक आईपी दे देते हैं, और स्टैटिक आईपी के थ्रू आप कनेक्शन करके यूजिंग ए वीपीएन उसका डेटा एक्सेस कर रहे हो। तो मतलब वो वीपीएन टेक्नोलॉजी से ही करना पड़ेगा ना ऐसे? यस यस, ये वीपीएन टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हो। ये क्या कॉस्ट इफेक्टिव है बेसिकली, क्योंकि आपको सर्वर बवर या वरना अगर आपको एकदम परफेक्ट अच्छी सिक्योरिटी और वो सब चाहिए तो आपका डेटा अमेजोन के क्लाउड के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर के क्लाउड के ऊपर, बट वो बहुत महंगा गिर जाता है हाँ, बेसिकली। नहीं लेकिन सर वो नहीं रखना, वो तो मुझको हार्डवेयर तो मेरे ऑफिस का ही रखना है, लेकिन वो हार्डवेयर डेटा जो मेरे ऑफिस में स्टोर है वो मैं कहीं भी बाहर से एक्सेस कर सकूं। हाँ, तो फिर आपको ये वीपीएन वाला ये ऑप्शन बेस्ट गिरेगा। वीपीएन के थ्रू मतलब आपका ऑफिस का जो सर्वर रहेगा ना, उसके आगे आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है ना ऑफिस में, उसको आपको एक स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा। मतलब ऑफिस में एक स्टैटिक आईपी लेना पड़ेगा, उसका कुछ इतना खर्चा भी नहीं है। और एक वीपीएन को यूज करके यू कैन एक्सेस द स्टैटिक आईपी, एंड स्टैटिक आईपी से यू कैन एक्सेस द सर्वर बेसिकली।
ओके, मतलब फिर ऑफिस क्लोज होगी, लेकिन फिर वो सर्वर का पावर और नेट चालू होगा ऑफिस में, तो मैं कहीं से भी फिर वो एक्सेस कर सकता हूँ ना वो डेटा मेरे ऑफिस का। हाँ, यस अभी क्या यस। करते हैं कि भाई किसी को ऑफिस में बिठा के एनी डेस्क चालू करवा के हमारे पीसी का एक्सेस लेके वो डेटा कभी चाहिए तो वो लेते हैं, नहीं, ये तो फिर लेकिन ये उसमें सपोज। इजी हो जाएगा आपको, वीपीएन वाला और ये स्टैटिक आईपी वाला फिर। ओके सर, ओके, थैंक यू। सर एक दूसरा अभी सिक्योरिटी जैसा हो रहा है, एक हाँ, सभी कंप्यूटर रहते हैं ऑफिस में, उसमें लाइसेंस विंडो नहीं रहते नॉर्मली। ऑफिस है तो ऑफिस पे लाइसेंस नहीं रहता है। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट जहाँ पे 10 से ज़्यादा सिस्टम लैन में काम करते हैं वहाँ पे नोटिस दे रहा है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट प्लेस पे, कि आपने इतने सॉफ्टवेयर आपके यहाँ पे एक्टिव हैं और इतनी इतनी बार आपने उसको फॉर्मेट किया है, इतनी बार रीइंस्टॉल विंडोज किया है इस की से। तो इज इट ओके। पॉसिबल that much details they नहीं can provide from our computer? नहीं नहीं नहीं, देखो, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो ना बेसिकली, तो विंडोज को ये तो हाँ जरूर पता चलेगा हाँ कि आपके ऑफिस में कितने कंप्यूटर है जिसके ऊपर विंडोज रन हो रहे हैं। दैट डिटेल इज पॉसिबल बिकॉज यू आर रनिंग देयर सॉफ्टवेयर ओनली। ओके दैट इज पॉसिबल। बट अगर विंडोज इतना परफेक्ट डिटेल देता है ना कि बॉस इतनी बार आपने फॉर्मेट मारा था और ये, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब वो ऑफिस का जो वो रहता है ना लोकल एएमसी वाला बंदा, हार्डवेयर मेंटेनेंस वाला बंदा, हम्म वो या उसी में से किसी ने या तो फिर टैली बैली या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने आया होगा, उन लोग में से किसी ने बताया होगा। देखो, विंडोज के पास इतना रहता है कि आपने आपके ऑफिस में कितने सिस्टम रन हो रहे हैं, बिकॉज वो आपका नेटवर्क स्कैन मार सकता है बेसिकली। बट यस यस इतना नहीं देख यस। सकता कि इस पीसी के ऊपर आपने एक आध बार फॉर्मेट मार के फिर से विंडोज इंस्टॉल किया है, नहीं, उतना नहीं होता। नॉट सर नॉट सर इस वो ऑफिस का डिटेल भी वो दे सकते हैं, आप ऑफिस पायरेटेड यूज कर रहे हैं ऐसा माइक्रोसॉफ्ट वाला? मतलब ऑफिस पैरेटेड यूज करें मतलब? सर फॉर एग्जांपल क्या हुआ, मैं केस बोलता हूँ, मुझे आज नोटिस आया, हाँ माइक्रोसॉफ्ट से मेल आया दैट इन योर ऑफिस 10 PCs आर बीइंग यूज्ड विच लाइक विंडोज 8, विंडोज 10 सो एंड सो सीरियल की, और ऑफिस 2013 तो ऑफिस 2008 इतने यूज हो रहे हैं, और आप उसका लाइसेंस प्रोवाइड कीजिए। ठीक है। तो दैट इज दे कैन एक्सेस माय ऑफिस वर्जन आल्सो। जैसे आपने बोला, यस मेरे समझ गया, एक इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है, लैन में मेरे 10 पीसी चल रहे हैं, तो 10 का विंडोज मेरे पास यूज हो रहा है, वो डेटा उनके पास चलता है हम्म। माइक्रोसॉफ्ट के पास, कि इस ऑफिस में 10 लैन पे पीसी है, उसमें विंडोज इंस्टॉल हुआ है। हाँ लेकिन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस कौन सा इंस्टॉल किया हुआ है वो भी डेटा वो निकल सकते हैं ऐसे? हाँ, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। बट जनरली ना, जनरली आई एम टेलिंग यू, मतलब हमने भी हम्म बहुत सारे नोटिस देखे हैं और वी आर डीलिंग विद दिस अ लॉट। बट जनरली कोई सीरियल की के साथ नहीं बेचता है। उन लोग खाली इतना बोलते हैं, हम लोग आपके पास इतने, मतलब वी आर अवेयर दैट यू आर यूजिंग अनयूज्ड, मतलब पायरेटेड लाइसेंसेस, बस। कभी कभी नंबर्स भी बोल देते हैं, लेकिन हम्म कभी कभी तो नंबर्स और इतना प्रिसिशन, मतलब somebody has just given a tip to them that इनको एक मेल भेज दो, इन लोग हम लोग से ही खरीदेंगे और हमारा बिजनेस हो जाएगा करके। बिकॉज अभी सबको देखो, बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के जो वेंडर्स होते हैं ना, जिन्होंने, वो बोलते हैं ना गोल्ड वाला हाँ मेंबर, प्लैटिनम वाला मेंबर, ये जो रीसेल करते हैं उनके हाँ प्रोडक्ट, हाँ हाँ तो उनको ये क्या बोलते हाँ। हैं, उनका अपना ये डेडलाइन या मार्जिन या जो भी बोलते हैं ना, सेल्स तो इतना दिखाना पड़ता है बेसिकली, क्योंकि आप मेंबर बने हो, उनके पार्टनर बने हो, पार्टनर हम्म बन के सेल नहीं कर रहे हो। तो वो कभी कभी पार्टनर ही बाद में क्या बोल देता हम्म है कि मेरा ये क्लाइंट है या मेरा XYZ, मुझे पता है ये सी है, उनके पास इतने कंप्यूटर है, उनका ये है, आप खाली आपके साइड से एक मेल भेज दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हम्म। वैसे अभी वो ओके। माइक्रोसॉफ्ट को आप बोलोगे कि सर बिकॉज ऑफ कोविड, ओके, देयर यू नो देयर इज अ फाइनेंशियल क्रंच, ओके, इन अ फेज आउट मैनर आई विल बाय इट आउट, मैं फेज आउट मैनर में बाय करूंगा, मेरी कैपेसिटी नहीं है 10 का 10 यूज करने के लिए, ओके, तो मैं एक आध दो लाइसेंस खरीदने के लिए रेडी हूँ करके। वरना अभी तो क्या है सर, 2-3 हजार यस वो रुपए में वो एक नेगोशिएट हाफ करते हैं। आ जाता है। या वी हैव डन इन फ्यू क्लाइंट्स ऑफ अस, तो 10 सिस्टम चल रहा है ऐसे, फिर वो करके 3 या 4 आप ले लो तो हम बंद कर देते हैं, 300 हाँ, सेल उन हो लोग गए बाद में हमारे। सेटलमेंट कर ही देते हैं। यस यस। लेकिन सर इसका हम देख सकते हैं ऐसे हमारे नेटवर्क में विंडोज कौन सा चल रहा है? जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट को मालूम है मेरे पास आज नेट कनेक्टेड है मेरे ऑफिस में, एक इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, तो वो एक्सेस कर सकते हैं कि सो एंड सो स्टैटिक आईपी पे इतने सिस्टम काम कर रहे हैं विद विंडोज।
वो मैं जान सकता हूँ कि आपके सिस्टम मतलब जैसे आपको ये देखना है कि आपके नेटवर्क में कौन सा विंडोज में कौन सा सीरियल की चल रहा है सर। फॉर एग्जांपल मेरी ब्रांच ऑफिस है, मैं नहीं जा पा हाँ रहा हूँ, अभी कोविड है तो मैं बड़ौदा नहीं जा पा रहा हूँ या राजकोट नहीं जा पा रहा हूँ कोई भी हिसाब से। तो अभी हाँ वहाँ पे मेरे 4 सिस्टम ही मैंने दिए क्लाइंट को, मेरे स्टाफ को यूज़ करने के लिए, और स्टैटिक आईपी वो यूज़ कर रहे हैं। सर्वर से मैं भी ऑफिस एक्सेस कर रहा हूँ, मेरे स्टाफ भी घर से ऑफिस कर रहे हैं, जैसे अभी जिनेश ने बात किया वीपीएन की हमारी बात हुई। तो अभी वहाँ पे 4 सिस्टम काम कर रही है, लेकिन मैं जान सकता हूँ वहाँ पे 5 सिस्टम है या नहीं है, और विंडोज कौन सा है या ऑफिस कौन सा है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर के थ्रू आप स्कैनिंग मार के देख सकते हो। ओके मैं आपको सॉफ्टवेयर का नाम भी बता देता हूँ, बेलार्ड जरा। ओके। ये रहा बेलार्ड एडवाइजर, इसके थ्रू आप कर सकते हो। आपको पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की इन्वेंट्री मिल जाएगी। नहीं, बेल्लार से तो सर मैं अपने सिस्टम का डिटेल डाल सकता हूँ ना, नहीं वो ये नेटवर्क का आ स्कैनिंग, जाएगा। 5 सिस्टम चल रही है या 7। ये है ना, वरना ये वाला यूज कर लीजिए सर, स्पाइस वर्क्स। एक मिनट हाँ, ये रहा स्पाइस वर्क्स में ना सर ओके इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में आपको ये पूरा मिल जाएगा। ओके ये रहा डिवाइसेस, और वो ओके पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना, स्कैन मारना पड़ेगा बस थोड़ा। ओके। यस यस, लेट मी नो इफ यू मतलब और कुछ माइंड में आ रहा है डाउट्स ऐसे। Okay, I'll just give you one website over here. ये वाली एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in। ओके, इन केस अगर कुछ इंसिडेंट होता है नेट बैंकिंग का या फाइनेंशियल फ्रॉड का समथिंग लाइक दैट, एंड यू आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, या मतलब जनरली फटाफट पहले रिपोर्ट करना होगा, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर रिपोर्ट कर सकते हो करके। यू कैन यूज दिस वेबसाइट टू रिपोर्ट द साइबर क्राइम। ऑनलाइन है एंड यू कैन रिपोर्ट सर दिस। एक्चुअली फोन टैब वगैरह अगर गुम होता है प्रैक्टिकली, हाँ तो कोई हाँ, सोल्यूशन? नहीं सर, बस खाली आईएमईआई नंबर के थ्रू बस खाली एक रिपोर्ट फाइल करो, और आईएमईआई नंबर के थ्रू ही कर सकते हैं सर। ओके। ओनली ओनली पुलिस कैन ट्रेस इट आईएमईआई नंबर के थ्रू। या बस वो तो उनको करना होता है सर, वैसे इंटरेस्ट नहीं लेते लोग। नहीं नहीं, पर पुलिस वाले का खुद का फोन गुम जाता है, उन लोगों को खुद को नहीं मिल रहा है। बिकॉज क्या हो रहा है, फोन गुम जाता है, महाराष्ट्र गुजरात से फोन गुमा, वो जाएगा बिहार झारखंड कलकत्ता के साइड पे। कलकत्ता का फोन गुमा, वो जाएगा केरला के साइड पे। केरला का फोन गुमा, वो जाएगा दिल्ली के साइड पे। तो पता भी चलता है उनको कि फोन उधर है, पर उस स्टेट का जाएगा कौन, उस स्टेट के पुलिस के साथ हेडेक कौन करेगा, उसको आदमी को कौन यस बुलाएगा, यस वो सब कुछ को नहीं करने का है। सर, एग्जैक्टली आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस फॉर माई फोन। 3 महीने के हाँ बाद विथ टॉकिंग टू डीवाईएसपी एंड सिटिंग इन द साइबर रूम, दे हैव मैनेज्ड टू क्रैक डाउन, एंड 3 साढ़े 3 महीने के बाद मेरा फोन गुम गया था, वो वापस आ गया। लेकिन हम्म अभी वो खुद बोल रहे हैं कि इतना मेहनत कौन करेगा, हमारे पास हाँ रोज का 100 फोन का अगर आ गया कंप्लेन, अभी वो राइट 100 फोन के पीछे कौन काम करेगा। यानी इफ हाँ यू हैव दे विल राइट राइट। और सर सेम साइबर फ्रॉड में भी ऐसा ही है, फाइनेंशियल फ्रॉड कुछ हुआ है तो अब तक मुझको तो पता नहीं कि कितने केसेस में आपको पैसा वापस मिला है। मोस्टली केसेस में आप कंप्लेन करवाते हो, लेकिन बाद में कुछ रिजल्ट तो पॉसिबल होता नहीं कि किसी को पकड़ा गया हो नहीं या आपका पैसा वापस मिला नहीं हो। नहीं नहीं, वेरी लेस चांस उसमें भी, क्योंकि अभी क्या है कि पुलिस वाले को एक तो जल्दी साइबर समझ में आया नहीं है अभी भी, वैसा है। हाँ, और तो अपना इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चांस है। ऐसा इंडिया में भी नहीं है कि इतना मीन्स जितना नंबर ऑफ फ्रॉड्स होता है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए कि पुलिस वाले या उतना उनको नॉलेज वगैरह भी नहीं है कि मीन्स अभी तो प्रिवेंशन वही बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। यस यू आर राइट। यस, अभी के लिए ना वही है, इसके लिए मैं बोल रहा था ना, प्रिवेंशन इज मतलब
होगा क्या कि अगर नसीब अच्छा रहे देन पैसा भी वापस मिलने का चांस है, बट अब तक तो वेरी रेयर, वेरी रेयर। ओके, आई विल जस्ट शेयर माय ईमेल आईडी ओवर हियर नाउ। ओके, मैं आपको ना सेफ्टी टिप्स और वो सब सर को भेज दूंगा। ओके, दिस इज माय मोबाइल नंबर, दिस इज माय ईमेल आईडी। अगर आपको कुछ भी आगे डाउट्स होगा तो यू कैन आस्क मी बेसिकली एनी टाइम। Okay, I think James bhai, you're there. हेलो। ओके, हाँ सर जितेंद्र जी, इट्स जस्ट दैट मेरे को भी थोड़ा निकलना पड़ रहा है, एक मेरे एक दो क्लाइंट की इमरजेंसी आ गई है फिर से। सो आई एम आस्किंग जेम्स भाई टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम and I'll share my email ID and my mobile number. So अगर any of the participants have any further doubts or queries ना, please contact me at any point of time. और मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से कि इन द लास्ट 6 मंथ जो मैं हम लोग नोटिस कर रहे हैं ना, वो सब लोग यही हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि फोन के ऊपर ज्यादा टारगेट्स किए जा रहे हैं। ओके, बिकॉज आज फोन के ऊपर ही अपने ईमेल आईडी, व्हाट्सएप और मेन तो मोबाइल बैंकिंग शुरू हो चुका है। तो एक सिंपल रिक्वेस्ट है, लर्न टू सेफगार्ड योर डिवाइस। बेसिकली अपना जो फोन रहेगा ना, हाँ वैसे वो उसको जरा सेफगार्ड करना बराबर से रखना सर, वैसे। Thank you, Sachin bhai. थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर जेम्स भाई इज देयर, आई थिंक वो थोड़ा आपको एक दो तीन स्लाइड्स के थ्रू भी वो आपको सर और सेफ्टी टिप्स दे विल मेक यू गो थ्रू बेसिकली इफ यू आर ऑल इंटरेस्टेड। आई एम सॉरी आई हैव टू टेक ए लीव, एक क्लाइंट के उधर शायद कुछ दो तीन रैंसमवेयर आ गए तो दे आर कॉलिंग मी, बट मेरे को भी फोन अटेंड नहीं कर पा रहा था। सो सॉरी बट आई हैव टू जस्ट लीव लिटिल बिट अर्ली टुडे वैसे। But thank you everybody, thank you for interacting, मतलब basically it was good to know that you were asking me all the the difficulties and the practical part of it. So it was good to know that each one has each one had different queries. So it was very good interacting with you all basically. So thank you everybody, thank you, and thank you Jitendra ji for inviting me, both chairman sir, Anand chairman sir, thank you everybody. Thank you, Sachin bhai. Thank you. Hello, हेलो। James, you can continue. यस। Now you are presenter, so you can present your यस। presentation. ओके। Everybody can see my screen. Yeah, Hello. Yes. Yeah. yeah, yeah. Yes, sir. Thank you sir. Thank you sir. जैसे कि सचिन सर ने हम लोग को बताया कि मेरा नाम जेम्स वाघेला है और मैं आईटी फैकल्टी, एडवांस फैकल्टी आईसीएम में भी हूँ और सचिन सर के साथ मैंने कई सारे सेमिनार्स किए हैं। तो हम आपका आगे वीडियो देखते नहीं हैं कि सॉरी जेम्स, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। it will take some time sir. It will take some time. Can you see my PPT? Yeah, Yes, yeah. sir. Even you Okay. can speak in Gujarati, James bhai. Gujarati में बोलते तो कभी कोई वांदो ना थे. Okay, Bhavesh bhai, thank you.
first of all, I'm covering three more points about cybercrime. जो भी सचिन सर ने मुझे जो दिए हैं उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है ये ransomware. So anybody know about ransomware? What is ransomware? What is ransomware? Do you know about that? नेट के जरिए अपने नेटवर्क और फोल्डर Hello. so that hides or deletes our data via internet. Okay. In fact, one of our friend was also caught by some ransomware, and people had asked some ransom money. His computer was totally locked. Okay. I think that is what it is. Like this. Okay. So yes. What is ransomware? तो ransomware जो है ये एक कंप्यूटर मालवेयर है. It is a type of virus, right? Virus is a short form. Virus stands for vital information resource under siege. वायरस क्या करता है कि वो अपना ही कॉपी क्रिएट करता है, राइट? एंड मालवेयर इज द मोस्ट पावरफुल एक्टिविटी of program that destruct your computer and infected, right? And क्या करता है ransomware कि आपका जो भी पर्सनल फाइल्स रहता है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल, डेटाबेस, सोर्स कोड्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑल जो आपका पर्सनल फाइल होता है उसको वो किडनैप कर लेता है, मतलब कि एनक्रिप्ट कर लेता है, और इसका आप एक्सेस उसका आप नहीं कर सकते हो, राइट? अभी वो लोग आगे क्या करते हैं, आपके पास पेमेंट मांगते हैं कि आप मुझे बिटकॉइन में फॉरवर्ड करो. तो अगर आप बिटकॉइन में फॉरवर्ड करोगे तो ही वो आपको मैथमेटिकल की सेंड करेंगे, वरना वो लोग नहीं करेंगे, राइट? सो कौन से टारगेट एज पर द न्यूज एंड एज पर द साइबर क्राइम डेटा हु आर टारगेट फॉर द रैंसमवेयर? सो उसमें गवर्नमेंट एजेंसी आ जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज, लो फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन विद सेंसिटिव डेटा. सो सेंसिटिव डेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी होता है, राइट? क्लाइंट्स का सब डेटा, दिस इज मोस्ट सेंसिटिव डेटा, राइट? एंड यूनिवर्सिटीज. तो ये सब टारगेटेड है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में वो पैच रखना, मैंने कि अप टू डेट में इसका लाइसेंस वर्जन उसका खरीदना पड़ेगा, राइट? तो ही आप वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर पाओगे, राइट? देन नेक्स्ट जो है, डोंट इंस्टॉल, मतलब ये आपने कोई इंटरनेट पर से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसमें आपको एक्सेस पूछ रहा है कि आप मुझे इंस्टॉल करो, पर विद एडमिन राइट्स, राइट? तो अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो भी आप में वो रैंसमवेयर आ जाएगा, तो ये आपको नहीं करना है, राइट? देन इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा? रैंसमवेयर के लिए जिसमें मलिशियस प्रोग्राम के जो एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर जो आते हैं, जो रैंसमवेयर से रैंसमवेयर को निकाल देते हैं, वही वाले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए. उसमें कई सारे फैसिलिटीज हैं. अगर आप मानो कि ऑफिस में आपका एक सर्वर है और सब क्लाइंट है, तो सब क्लाइंट पे और सर्वर पे एक आप व्हाइट लिस्ट सॉफ्टवेयर डाल दीजिए. व्हाइट लिस्ट सॉफ्टवेयर से क्या होगा कि मानो कि जो भी एप्लीकेशन आप सबको देना चाहते हो वही सबको मिलेगा, मतलब कि सबको MS ऑफिस ही यूज करने देना है, तो वो MS ऑफिस ही सब में चलेगा और कोई भी एप्लीकेशन वो यूज नहीं कर पाएगा, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बैकअप योर फाइल्स, राइट? देन रैंसमवेयर को रिमूव कैसे करें, राइट? इफ यू आर यूजिंग विंडोज 10, राइट, वो भी लाइसेंस वर्जन, देन आप एक उसको सेफ मोड में इंस्टॉल करो. उसमें सेफ मोड में चालू करके आप एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर यूज करो.
देन आपकी सिस्टम को स्कैन करो और जो भी जो रैंसमवेयर फाइल्स है, जो मैलिशियस प्रोग्राम्स है, उसको आप डिलीट कर दो, राइट? उसको वहां पे क्वेरी टाइम कर दो, तो वो हो जाएगा। देन रिस्टोर योर कंप्यूटर, तो वो प्रीवियसली जैसा होगा वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया है कि मैंने कैसे रैंसमवेयर हटाया था। तो मैं आपको ये विंडोज 10 का कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे रिमूवल में फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन कि आप जब कंप्यूटर रिस्टार्ट करोगे, मीन्स का सेफ मोड में ओपन करोगे तो ऐसा स्क्रीन आएगा। तो 3 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें आप ट्रबल शूट यूज कीजिए, राइट? देन ट्रबल शूट के बाद आप एडवांस ऑप्शन में जाइए, ट्रबल शूट में। उसके बाद ट्रबल शूट के बाद एडवांस ऑप्शन में जाके स्टार्टअप सेटिंग ऑप्शन है, उसमें जाइए और स्टार्टअप सेटिंग में ये सब एनेबल और डिसेबल वाला आपको स्क्रीन देखेगा। उसके बाद आपको रिस्टार्ट करना है और रिस्टार्ट करने के बाद ही आपको सेफ मोड में जाके एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर यूज करके उसको सब मैलिशियस फाइल को आपको रिमूव कर देना है, राइट? तो ये रैंसमवेयर का सॉल्यूशन है, राइट? Then juice jacking. Did you know about juice jacking? What is juice jacking? Anybody? When we use airport or somewhere charger, I think there they are using this. Yes sir. Juice jacking. This is not juice orange apple, right? This is a juice of your data, juice of your database, juice of your mobile files, folders and all this, right? So जो USB डेटा है, मानो कि जब हम एयरपोर्ट जाते हैं, राइट, तो एक आपको एक फ्री चार्ज कियोस्क दिखेगा, ऐसा वाला या फिर ऐसा वाला दिखेगा, राइट? तो ये एयरपोर्ट पे फ्री चार्ज देते हैं, राइट? तो जब आप चार्जिंग करते हो, राइट, उसमें से तो आपका जो डॉक रहता है, वो डॉक के अलावा भी और पिन्स भी होते हैं जो डायरेक्ट यूएसबी से करते हैं, राइट? तो यहाँ से आप यूएसबी में डालोगे तो वो जो पीछे वाला जो लिनक्स सिस्टम रहता है, मतलब कि एक कॉर्ड रहता है, कॉर्ड के बाद उसके बाद वो लिनक्स सर्वर के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ऐसा कई जगह होता है, एयरपोर्ट्स पे भी होता है, अभी तो रेलवे स्टेशन पर भी आपको ये कियोस्क मिल जाएगा फ्री चार्जिंग वाला, कि जिसमें आप लोग चार्जिंग करते हो। और ऐसा नहीं कि वो चार्जिंग एकदम फास्ट से हो जाएगा, इसमें टाइम भी लगेगा। तो वो जो टाइम लगेगा उसमें आप उसमें क्या होता है कि आपका जो मोबाइल का जो सारा डेटा है वो वहां पे चला जाता है। तो अभी वो कैसे चला जाता है, तो उसका थोड़ा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डीप में मैं दिखाऊं कि अभी ये वाला जो इमेज है ये पुणे का रेलवे स्टेशन का है। तो उसमें भी ऐसा हुआ था एक बार, राइट? तो यूएसबी चार्जर, तो यूएसबी चार्जर का मैं आपको बताऊं कि यूएसबी चार्जर में क्या होता है। उसमें ये उसका आर्किटेक्चर है, तो उसमें 4 केबल्स रहते हैं और एक उसका नॉट मतलब कि एक आपका कनेक्टेड है कि नहीं वो यूज करने के लिए होता है। तो उसमें जो रेड होता है वो आपका वोल्टेज का होता है और उसमें व्हाइट एंड ग्रीन होता है। तो व्हाइट एंड ग्रीन डेटा इन और डेटा आउट के लिए होता है, और जो ब्लैक होता है ना वो आपको बताता है कि वो कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये उसका वो है। तो आप देखो कि यूएसबी जो है, यूएसबी में ये व्हाइट और ग्रीन डेटा भी है, मतलब कि आप जब भी आप लॉग इन करोगे कंप्यूटर में तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपको चार्जिंग कैसे करना है, एज अ डेटा ट्रांसफर के लिए करना है या फिर सिंपल चार्जिंग के लिए करना है। तो अगर आप डेटा चार्जिंग के लिए करोगे तो वो डेटा ही यहाँ से लेगा, मतलब कि यूएसबी में ये जो केबल्स दिए हैं उसके थ्रू ही वो जाता है फाइल्स। तो अभी मैं इसका आपका थोड़ा मैं डिटेल में बताऊं कि इस चार्जर में ये है चार्जर, राइट? तो रेड ग्रीन व्हाइट एंड ग्रीन, राइट? एंड जो ब्लैक वाला है वो आपको सिग्नल देता है कि आपका जो लाइट चालू होता है मोबाइल का, जब आप चार्जिंग प्लग इन करते हो तब आपका लाइट चालू होता है। तो वो ब्लैक वायर से पता चलता है कि आपका वो चालू है, राइट? तो ये यूएसबी चार्जर का है, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला एक इमेज है। तो एनीबॉडी कैन टेल मी कि ये इमेज क्या है? हेलो?
एयरपोर्ट आपने, हाँ यस एयरपोर्ट है, पर आपने कभी देखा है ऐसा कि ऐसे कुछ, ऐसे कुछ लॉन्च या फिर ऐसे ये वाला लॉन्च एरिया कभी देखा है? लॉन्च एयरपोर्ट लॉन्च हाँ एयरपोर्ट लॉग, राइट। तो एयरपोर्ट लॉग की मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट लॉग में आप जाते हो, राइट, तो उसमें भी अभी एक फ्रॉड होता है, और मेरे कई सारे जो कलीग्स हैं वो इसका शिकार भी बने हैं कि कैसा होता है कि अगर आपको मानो कि आप फर्स्ट क्लास का टिकट लेते हो, तो फर्स्ट क्लास कई जो ईस्टर्न चाइनीज एयरलाइंस है और जो साउथ अफ्रीका की जो लाइन्स है, मतलब कि सभी में होता है, पर जो भी ये जो ईस्टर्न चाइनीज एयरलाइंस है वो सबसे कम में टिकट देता है फर्स्ट क्लास का, और वो फर्स्ट क्लास में वो लॉज का एक्सेस भी देता है। तो जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे 3 घंटे पहले जाओ कि 5 घंटे पहले जाओ, तो आपको लॉज में वो एक्सेस मिल जाएगा। तो लॉज में तो आप जानते हो कि लॉज में आपको सब कुछ फैसिलिटी वहां पे देते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्या आपने ऐसा देखा है प्रायोरिटी पास ऐसा कुछ? हाँ जी यस। तो ये जो प्रायोरिटी पास होता है उसमें ये कैप्चा कोड रहता है, राइट। तो जो भी लॉज का मेंबरशिप लेगा उसी को ही ये पास मिलेगा, और उसी के मोबाइल में ही ये कैप्चा कोड मिलेगा, राइट। तो उसमें क्या है कि जब आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको वो बोलते हैं कि आपको 1 ईयर में 5 टाइम्स आपको ये दिया जाएगा। तो वो जो 5 टाइम्स जो दिया जाएगा वो वाला जो एक्सेस है वो आप किसी फ्रेंड को दे रहे हो। मानो कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं मेरे किसी को फ्रेंड को मैंने दिया कि मेरे पास है तो तुम यूज कर सकते हो, तो मैंने उसको कैप्चा कोड सेंड किया, तो वो वही कैप्चा यही कैप्चा से वो लॉज में एक्सेस कर पाएगा। तो अभी क्या होता है फ्रॉड कि ये जो कैप्चा जो है वो कैप्चा गलत होता है, राइट। तो जब आप आगे जाते हो प्रायोरिटी पास में आगे जाते हो, तो ये कैप्चा कोड गलत होने की वजह से आप वहां पे एक्सेस नहीं कर पाते। और जिसने भी और कई सारे ऐसे वेंडर्स हैं अभी अभी यहाँ भी है, वर्ल्ड में भी है, जो लोग क्या करते हैं यही कैप्चा कोड एकदम गलत गलत देते हैं, और उसको आप जब यूज करोगे तब आप वो एक्सेस नहीं दिया जाएगा, राइट। तो ऐसे भी फ्रॉड्स होते हैं, और इसका जो प्राइस होता है वो डॉलर में होता है। वो $500 से ये मेंबरशिप स्टार्ट होती है, राइट। तो अगर आपको अगर ऐसे फ्रॉड में फंसना नहीं है, तो आप पहले जो आपका जो कैप्चा कोड है वो आप पहले चेक कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं, राइट। तो ऐसे भी आईसीआईसीआई बैंक भी आपको ये एमरल्ड कार्ड देती है, या फिर ये जो एमएक्स कार्ड एमरल्ड देते हैं, कोरल कार्ड देते हैं, तो इसमें भी ये सब होता ही है चिप कार्ड में। तो जब आप क्रेडिट कार्ड ये वाला क्रेडिट कार्ड उनको देते हो, तब आपका जो एक्सेस है वो भी वो ले लेते हैं विथ कैप्चा कोड, राइट। ये एचडीएफसी का डीनर्स इंटरनेशनल कार्ड है। इसमें भी क्या होता है कि जब आप वो प्रायोरिटी पास और कोई लॉज में जब आप एक्सेस करते हो, जब आपको लॉगिन बोलते हैं, जब लॉगिन बोलते हैं तब ये सारी डिटेल्स आपको वहां पे फिलअप करना होता है। तो एक बार आपने मानो कि फिलअप कर दिया, तो ऐसी ऐसी ही लॉज में आपको वो आपका जो डेटा है वो वहां पे चला जाएगा। तो आपको वो ध्यान रखना है कि आपको एकदम ये वाला कार्ड यूज नहीं करना है। आपको मानो कि आपने मेंबरशिप ली है, या फिर किसी ने आपको कैप्चा कोड दिया है, किसी ने आपको वाउचर दिया है, तो वही वाउचर और पास का ही यूज करें, राइट। अगर आप वो तो वो आपका एक एग्जैक्टली वो कार्ड में नहीं आएगा, राइट। देन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तो आपका कैप्चा कोड वाला हो गया, और ये सब जो वो लोग देते हैं वो हो गया। और भी एक जो देते हैं, मानो कि वो जो फैसिलिटीज देते हैं वो फैसिलिटीज में कई सारे होता है, राइट।
के कई सारे वो फैसिलिटी देते हैं, फूड है, ड्रिंक है, सीटिंग लग्जरी है, स्पा भी देते हैं और फ्री वाईफाई देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कई सारे लॉजेस ऐसे हैं इस दुनिया में जो आपको फ्री में तो सब कुछ देते हैं, पर आपके पास वो सब कुछ ले भी जाते हैं, राइट। मानो कि अगर आप वाईफाई उनको दे दोगे तो वो आपका सारा एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और वहां पे भी वो यूएस आपको चार्जिंग का कियोस्क वहां पे भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एयरपोर्ट पे जाए तो आप अपना खुद का एक पावर जो भी रहता है वो आप लेके जाइए, राइट। तो ये एयरपोर्ट का है। तो अवेयरनेस में क्या रखनी है कि यही कि डू नॉट यूज योर पब्लिक फोन चार्जिंग, राइट, एंड पब्लिक वाईफाई नहीं यूज करना चाहिए। और जब भी आपका ब्लूटूथ और वाईफाई का जरूरत नहीं है तो उसको आप बंद कर दो, राइट। एंड अगर आपको एयरपोर्ट का पता होता है कि मुझे विदाउट मानो कि एक बड़ा एयरपोर्ट है तो मुझे वन डिस्टेंस टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है, तो मुझे मेरा नेट चालू करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मेरा ब्लूटूथ चालू करूंगा तो वो मुझे मैप में वो दिखा देगा। कौन? एयरपोर्ट में, राइट। तो वहां पे भी ऐसे ब्लूटूथ जैकर्स रहते हैं जो भी वो आपके ब्लूटूथ चालू होने से आपका वो एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आपको उसका एक्सेस का जरूरत नहीं तो आप वो बंद रखिए। देन मैंने जैसे आपको बोला कि आपका जो कैप्चा कोड है उसको आप एक बार स्कैन कर ले विथ जो क्यूआर स्कैनर साइट है, कई सारी साइट्स हैं जो क्यूआर स्कैन करते हैं, वो आपको यूज कर लो, तो उसमें आप नहीं फंस सकते, राइट। तो और एक बार मैं सोशल मीडिया पे जाना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया आपको पता है कि ये जो मैंने जो यहाँ पे लिखा है इडियट, राइट, और फूल लिखा है मैंने, राइट। तो अगर मैंने फेसबुक पे किसी को इडियट मैंने लिख दिया, राइट, तो ये भी एक क्राइम है और उसका भी आपको 6 मंथ्स जेल या फिर कुछ पेनल्टी आपको देना पड़ेगा अगर सामने वाला आपके पर केस करता है तो। वैसे भी अगर मैं फूल लिखा तो फूल की जगह मैं एस्ट्रिक भी लिख दूंगा ना तो भी मैं विक्टिम बनूंगा, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है सोशल मीडिया पे, राइट। देन ईमेल डेटाबेस का मैं बात करूं कि जैसे कि आपका यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा कि आप गूगल में डायरेक्ट लिखोगे ईमेल डेटाबेस, राइट, तो आपको यहाँ पे ईमेल डेटाबेस दिखेगा। अगर आप उसमें इंडिया क्लिक कर दोगे, राइट, तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं इंडिया में दिस साइट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो डेटा है आपका जो ईमेल आईडी है वो इस साइट पे है कि नहीं है। क्योंकि जैसे कि सचिन सर ने बोला कि आधार कार्ड का जो साइट है उसमें आपने बायोमेट्रिक्स दिया है, आपका पर्सनल डिटेल्स भी दिया है, राइट, और आपका सोशल मीडिया में भी आपका पर्सनल प्रोफाइल है। और जब भी आप मानो कि आपके प्रोफाइल के लिए स्टेटस क्या आप कुछ भी डालते हो ना, तो ये जो सोशल मीडिया वाले जो रहते हैं जो अपने प्रोग्रामर्स को बिठाते हैं, राइट, तो वो लोग क्या करते हैं आपका डेटा कलेक्ट करते हैं और अपना खुद का डेटाबेस बनाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको ईमेल डेटाबेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितने सारे हैं, अराउंड 6000 ईमेल है। तो ये 6000 ये एक ही साइट पे 6 लाख है। तो इसमें आपका ईमेल एड्रेस है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं वही चीज जो सचिन सर बोलते हैं कि अगर आप जो इंडिया में क्या है कि आपने सब कुछ दे दिया है कि आधार कार्ड में अपना आइस दे दिया, अपना फिंगरप्रिंट दे दिया, अपना नाम, अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी सब कुछ दे दिया, और वही मोबाइल नंबर आपका इनकम टैक्स की साइट पे है और वही आपका मोबाइल नंबर आपका बैंक में भी है, राइट।
तो ये सब जगह कनेक्टेड हो गया, तो उसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक सचिन सर का एक मास्टर स्टेटमेंट है कि आपका डेटा जो है वो पहले जा चुका है, आपका डेटा अभी भी जा रहा है, इस वक्त भी जा रहा है, और आपका डेटा फ्यूचर में भी जाएगा, क्योंकि आपने सब कुछ दे ही दिया है। तो इसका अभी कोई आपको चिंता होनी ही नहीं चाहिए, राइट। ये पर आपको इसको आपको सिक्योरिटी थ्रू आपको देखना है कि आगे से मुझसे कोई गलती ना हो, ऐसा मुझे आगे कुछ करना चाहिए, राइट। तो ये फ्री ईमेल डेटाबेस है, तो आप अपने दे सकते हैं। ऐसे ही आप कोई भी कंट्री का, मानो कि मैं यूएसए में लिख दूं, तो डेटाबेस यूएसए, तो उसमें मुझे पर्सनल, मानो कि बिजनेस लिस्ट में जिसका भी नाम है वो मुझे दिख जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन ये लोग सेल करते हैं, और उसका वो प्राइस भी इसमें रखते हैं कि ईमेल मार्केटिंग, डेटाबेस अवेलेबल, डेटाबेस एनालिसिस, सब कुछ यहाँ पे है। और लास्ट में मेरा यही था कि वो सचिन सर ने आपको बताया कि ऑनलाइन साइट, ये अगर आपके पास कोई फ्रॉड होता है तो आप ऑनलाइन इस पे कर सकते हो कंप्लेन। तो मैं थोड़ा उनको बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपने ये साइट खोला है, ओके, तो ये अगर आपके पास मानो कि कोई भी केस है, तो आप अपने मोबाइल के थ्रू भी, मोबाइल में एक साइबर हेल्प करके रहता है एप्लीकेशन, जो इसका ही है, डिजीसॉल्व का, डिजिटल इंडिया का, वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बटन है लर्न अबाउट साइबर क्राइम, तो यहाँ पे आप आगे पढ़ सकते हो। और नीचे की तरफ में ये आप देखो, ये सब वीडियोस ऑडियोस हैं कि ईमेल और फिशिंग स्कैम के लिए क्या है। तो एक बार मैं प्ले करके शायद आपको सुना दूं। ओके, तो ये मैं चाहता हूँ कि आप ये साइट पूरा देखें, और उसमें जो भी साइबर क्राइम रिलेटेड है वो भी आप देखें, राइट। थैंक यू। थैंक यू सर। जेम्स जी, हम वो व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं, तो उसमें क्या ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी देंगे? व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कर रहे हैं रेगुलर यूज में, हमारा जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो उसमें क्या हाँ हमें हाँ, ख्याल रखना है? व्हाट्सएप में मतलब ये जो व्हाट्सएप का आप वो बोल रहे हो ना, तो व्हाट्सएप में क्या है कि वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है अभी तो आपको व्हाट्सएप के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपके व्हाट्सएप में कोई लिंक आ रहा है, राइट, जो अननोन है और अननोन पर्सन हमें भेज रहा है, राइट, तो वो आपको क्लिक नहीं करना चाहिए, राइट। अगर आपको कोई डाउट है उसके रिगार्डिंग, तो आप क्या करो कि पहले आपका जो व्हाट्सएप है उसको आप अपने पीसी पे ऑन करो। आपको सबको पता हो कि जैसे web.whatsapp.com मैं खोलूंगा और उसमें मैं स्कैन करूंगा, तो मेरे सारे मैसेजेस जो है वो मुझे
मेरे स्क्रीन पे मुझे दिखाई देंगे। फिर क्या करना है, जो लिंक है तो वो जो लिंक है उस पे आप कर्सर ले जाइए, आपका मोबाइल का आपका जो कंप्यूटर का जो माउस है, वो माउस आप वो लिंक पे ले जाए तो वो लिंक पे डिस्प्ले होगा, वो लिंक पे वहां पे डिस्प्ले होगा कि ये जो वाला लिंक है वो आपको कहाँ पे ले जाएगा, राइट। तो अगर वो कोई फ्रॉड साइट है, मनी लॉन्ड्रिंग का साइट है, कोई आइडेंटिटी थेफ्ट का साइट है, कोई सॉफ्टवेयर पायरेसी का है, तो वो आपको क्लिक नहीं करना चाहिए, ऐसा है सर। और ये जो वेब व्हाट्सएप आप यूज करते हो तो आपको ऑलवेज वो लॉग आउट भी करना चाहिए। अगर आप लॉग आउट नहीं करोगे तो उसी पीसी में वो चालू रह जाएगा, राइट। तो वो कोई भी बंदा आके उसको एक्सेस कर सकता है, राइट। और वो आपको मोबाइल में पता नहीं चलेगा कि आपका वेब व्हाट्सएप कंप्यूटर में यूज हो रहा है। पर वो कब आप देख पाओगे, जब आप वो 3 डॉट क्लिक करके वेब व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये वाले मानो कि गूगल क्रोम में आपका लॉग आउट करना है, वो वहां पे डिस्प्ले होगा, लॉग आउट फ्रॉम गूगल क्रोम ऐसा ऑप्शन वहां पे दिखाई देगा। जब आप वो 3 डॉट पे क्लिक करके वेब व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तभी वो दिखाई देगा। ओके सर। और फेसबुक में क्या ख्याल रखना है मेनली? फेसबुक में तो सर वो वेरी वास्ट टॉपिक है फेसबुक तो फेसबुक में तो जैसा आपने अभी बोला कि अगर मैंने एक बार आपने एक अभी क्या है कि उसमें एक एक्टिविटी कंट्रोल वाला एक सिक्योरिटी ऐड किया है, तो उससे क्या होता है कि जब भी आप अननोन डिवाइस से या फिर अननोन ब्राउजर से वो ओपन करोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है, वो मेल में भी आता है और आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें भी आ जाता है। तो आपको वहां पे यही ध्यान रखना है कि आप वहां पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी दे सकते हो वहां पे, राइट। और आपका जो पेज है, मानो कि आपका जो पेज है, ब्रांड पेज है, वो ब्रांड पेज का मानो कि आपने एडमिन राइट सबको दिए हैं, 2% 3% को दिए हैं। तो कोई भी एडमिन अगर दूसरी जगह से वो खोलेगा तो वो भी आपको वहां पे देखना है, ऐसा है सर। और इसमें कई सारे हैं कि उसमें एक्सेस कंट्रोल, मानो कि एक जनरेट कोड रहता है, अगर जब तक आप वो कोड जनरेट नहीं करवाते हो तब तक वो फेसबुक वहां पे नहीं खुलेगा, राइट। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप फेसबुक मानो कि ब्राउजर में यूज करते हो, मानो कि आई एम यूजिंग गूगल क्रोम एंड उसके बाजू के टैब में ही मैंने फेसबुक ओपन किया, ठीक है। और फेसबुक के बाजू में मैंने एक दूसरा साइट खोला कि गोवा हॉलीडेज करके। तो इससे क्या होगा कि फेसबुक जो है वो आपका सारा डेटा, आपका ब्राउजर का डेटा वो रीड भी करता है, क्योंकि जब आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हो तब आपको यहाँ पे एक दिखता है, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ फेसबुक, ये शायद लॉगिन है, एक मिनट। हाँ, ओके। तो अभी मुझे नया अकाउंट बनाना है, तो मैंने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया, राइट। तो यहाँ पे सब मुझे डिटेल्स दे रहे हैं और नीचे की तरफ में आप यहाँ पे दे सकते हो, बाय क्लिकिंग साइन अप यू अग्री टू अवर टर्म्स। तो आपने कभी टर्म्स पढ़ी है कि उसकी टर्म्स क्या है। देन डेटा पॉलिसी, कि उनकी क्या क्या डेटा पॉलिसी, मतलब कि आपका सब कुछ डेटा, पर्सनल डेटा या फिर आप जो भी डालते हो, मतलब कि डेली डेली जब आप डालते हो कि मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया, मैंने किया, राइट। तो ये सब आप कर सकते हो।
एंड कुकी पॉलिसी, राइट। तो उससे वो पता चल जाता है कि साइट में मैंने गोवा हॉलीडेज खेला, खोला खुला हुआ है, तो अभी मैं तो फेसबुक को 3 आवर्स के बाद फेसबुक में आपको ऐड आ जाएगा गोवा हॉलीडेज का। आपको कई कई सारे वो डिफरेंस वाउचर्स भी देंगे कि आप उसमें क्या कर सकते हो इसके लिए। ओके, शेयर करना। हेलो, Hello. Hello. Thank you, James G. Now I request Kaushal Durak to give thanks. We have a Bhuj branch, Gandhidham branch, and Anand branch. थैंक यू सर। Good afternoon, friends. On behalf of Bhuj, Gandhidham and Anand branch of WARC of ICAI, I thank you, Sachin sir and James sir, for enlightening and giving a very informative information on the subject. It is rightly said that when there is no price for the service offered, then the commodity is we are the commodity. So we have to be very careful and use precautions while using internet as well as social media. Again, I thank all the members for participating in the webinar. Thank you, sir. Thank you.